a task which has never been done in our college as far as this method is concerned. So the whole staff is so capable, and we have always handled our admissions so well. And credit goes to all the teachers. But today, when the university has just 4 days before announced its system and methodology and all that, uh, we are trying to catch it up, and we are trying to uh, come up to the requirements, and we have a team of very capable people and who are working on it. Still, I am feeling that a kind of when I talk to various people, they are saying, "Sir, इतने ये problem होगा, ये problem होगा, ये problem होगा." Yes, definitely there are challenges. There are no problems. There are challenges. We will all meet them. And one thing more which I want to just share with you, which you must know, that earlier we used to get only 9 hours in one list actually. This time the university has given us a lot of hours, and we flexibility to do the work from our home, and it will not be, I am assuring you, it will not be any problem. So the demands which are coming to me, that we need 6 teachers, 5 teachers, 10 teachers, that will settle down in a first day itself, when we will meet tomorrow, God willing, and we will start the process. So please don't be afraid, don't feel that we require too many people to do the work. Definitely everybody is expected to contribute, and I appreciate everybody's contribution. And we shall be reshuffling also, because we have done everything in a very haste, and the people have been allocated, have been given. I am thankful to 3 conveners who have coordinators who have taken up the responsibility of doing category verifications: Dr. Kulanand Sharma, Dr. Vinay Kumar, and Dr. Dinesh Ram. And we will add people to their requirements, keeping in view the requirement of different departments, because it is a time to maintain and create the balance. And that balance has to be created with a calm mind, and to see that which is the actual requirement. If only 2 cases or 5 cases or 10 cases are to be done in one day in particular department, we will not require 6 or 7 people for that. We will require a little bit of time, and then we will be able to do it very well. And at every time we shall be helping you. Our team, central admission team, will be helping you to how to log in, how to do the things. I am sure the presentation is going to be of that class, and it will answer all the questions. So I assure you my cooperation. I expect cooperation from all of you, and I'm confident. I'm absolutely confident, as I have worked with so many people, that you have been very nice and you have been very helpful. So shall be those who have not been able to come today, not join, they must also feel that it is their duty also to contribute. If the need will be contact them, and they have to work for the college as requested by us, because keeping in view the need of the hour and the need of the requirement of the department or central admission committee or category committee or otherwise. And so is I'm expecting from the non-teaching staff leaders also. They have been very capable. They have always come up to more than expectations. We have both the AOs here and some of the staff also. Let's all work as a team, and I'm sure by the first list, second list will start. We'll be all settled, and things will be going in smooth way. Not speaking beyond this, I will now request my dear Dr. Arun Attri to please talk to you and share with you the presentation, so that if there is any doubt later on, you can ask him the questions. Thank you very much. Thank you, sir, for welcoming everyone. And yes, we all have capable staff and teachers, colleagues, and I know I have worked with them in the past also. So this time also they will complete the task with full dedication. Uh, yes, university has been little late in intimating the colleges and coming out with the procedures, whatever the reasons may be. But I think we have tried to. You can see that yesterday only we have received the links of the boards. So जब कल ही लिंक मिले हैं, तो देखिए हम आपको हमें we have to make ensure कि tomorrow when you come to the college, so we'll make ensure कि वो जो पोर्टल हमने बनाया है, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में आज बताऊंगा. जो कल प्रेजेंटेशन हुई थी, that was only for the conveners and the liaison officers of the category, जो भी conveners हैं उनके लिए थी.
तो आज हम डिटेल्ड देखेंगे, उसमें प्रोसीजर्स देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, और what how we can verify the caste certificates also and all that. I think इसमें दिनेश राम जी ने ज्वाइन किया नहीं किया शायद? दिनेश राम जी हैं? कुलानंद जी तो मुझे दिख गए हैं, क्योंकि उनका बड़ा होना इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी कन्वीनर्स का भी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। तो शायद दिनेश राम जी नहीं है, तो विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद हिम सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड एंड डू इट. So I have made a presentation in the form of a document. A PDF document is being there, which I will be circulating through group also, in the group that is being there, and I will also be giving the hard copy. We will ensure that tomorrow when you come, so hard copy is also being delivered so that you have a ready reference regarding if tomorrow or day after tomorrow or any time during the admission process you feel that you have skipped some points, so you want more clarification. Though I will be there in the college, other coordinators, Dr. N.S. Nag and Dr. Varinder will also be there, apart from the principal sir. So if you have any doubt, you can ask us regarding that. So let's start with the presentation. So, as I told you earlier also, this time, since all the admissions are going to be contactless and they have to be online, so the procedure has to be, through 3-tier system. The approvals have to be given at 3-tier system. So we have developed our, our own standard operating procedures. Now the problem is that people are still coming, and I have to, admit them, and I have to show my presentation. This is a little problem. So at tier 1 level, that is the teacher in charge or course convener level, what will happen? The students will be applying online, right? And now the student can apply only in one course in one college at a time. So it means that when he has applied in your college, our college, then it means that he might not have applied anywhere. So he is applying only in one college in one course. So he'll take up his application. Now what the teacher in charges or course conveners will do, they will log in the portal with their user ID and password. Now every teacher in charge, every convener will be given a user ID and a password. Now this is a unique ID and password. Remember, this whatever approvals you will be giving, it will be recording that user ID, that who has given the approval. Finally, when the application will be done, print out, the admission will be done. The printout can be taken out, and it can show that from which user ID this approval has been given at various levels. So all the teacher in charges, I request you to be little cautious while calculating. Although university is saying that their software will be containing a calculator of computing best 4%. I'm not sure that unless and until university has not demonstrated us that how the best 4 would be computed. They say that when the students will be applying, then only we can see that. So that will be only done after 10 a.m. tomorrow when the students will be applying, and then only we'll be able to see that how that calculator works. Now, but still, I would suggest you to cross-check that whether that eligibility software is working well, and is that as per the UG bulletin, the guidelines that has been there issued by University of Delhi. So the first step in the tier 1, is that you will log in and you will check whether the best 4 is falling within the declared cutoff or not. So we have already declared the cutoff. So above that, you will be 96% and above. So suppose it is there, 98% above it is there. So it will filter. First of all, we will filter. The first step that will be done by admin will be that it will filter all the applications as per the cutoff,
and then you will have only because sometimes what happens is student having a 74%, he will also apply, because this is very dangerous. This time it is very dangerous. The student is not coming, and simple 2 buttons, 2 approvals can get his admission done, right? In fact, I will say at tier 1. So teacher in charges are requested not to take it lightly, because if small error is being there at their level, so because in the next level the cutoff will not be checked, and if they approve that case, then he may get admission. So you have to see that whether only those cases are being approved, those who are falling in the best 4% cutoff. More detail we'll be knowing when tomorrow we'll see the portal, how it works. So this is what you have to see, that step 1, you see that whether the best 4 is falling within the declared cutoff. Yes, so follow step 2. If it is not, then you have to reject that application. Now, I have mentioned this note, though the university claims that their software would calculate best 4%, but it is advisable to cross-check the computation of effective best 4. Now, I don't know that, for example, if the 96%, how the software is taking, whether they have incorporated, because there are so many boards, so many subjects which are being there. I don't know that how they have, because in the past I have seen it has been a very tedious task to compute the effective best 4. When you say effective best 4, because there is a penalty of 2.5%. When you say that, suppose in the best 4, if I am not including, or I am including physical education, so I have to deduct, suppose 2.5%. So whether that software would be deducting 2.5% or not, that we are not aware of that, right? We have to see tomorrow. So just therefore, the cases which are being clear, you can, you have to see that, yes, these are the subjects which are eligible and making the best 4. You can approve them whenever you have any. So you will come to know tomorrow, day after tomorrow, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि whether it is working well or not. So first 2 days are very crucial for us. We have to be very cautious. So so you will follow step 2. The first thing is that in step 1, tier 1, step 1 is there. You will see that whether cutoff is there. Then you will go for step 2. Now, what is step 2? Step 2 is before going for step 2, you just see that what is the eligibility criteria computation of best 4 which is being there in the various courses. So for that, you need to keep in mind there are 2 lists, list A and list B. Now, even in the list A and the list B, you can see there are 2 lists, list A, list B, like this. The language, basically list A contains the language and list B contains the elective subjects. So the best 4 obviously has to be of 1 language and 3 elective subjects. 1 language and 3 elective subjects. So for different courses, there have been a different criteria, right? Now, there are some special instructions that you should keep in mind. If a paper, because that was there in the bulletin, if a paper's title does not match with that, what is being specified in list A and list B, it is mandatory for the applicant to provide a content equivalent certificate from the principal head of the institution last attended. देखो, मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि आप बोलोगे वहां पर, कल देखोगे कि उसमें सर्टिफिकेट ये कौन सा अटैच कर दिया सर, इसने ये कौन सा कर दिया. तो you have to see that sometimes there may be a certificate which is not equivalent to list A or list B. So in that case, the head of the institution or the principal will issue a content equivalent certificate. मान लीजिए उसका कुछ और नाम है उस पेपर का, यहाँ पे लिस्ट बी में या लिस्ट ए में या पॉलिटिकल साइंस दिया हुआ है, उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी दिया हुआ है मान लीजिए, तो वो एक कंटेंट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देगा वो प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, सर्टिफाइंग दैट द पेपर्स कंटेंट is equivalent to the NCERT class 12 syllabus for that paper. This equivalent certificate must be accompanied by a copy of the syllabus of the paper attested by the principal head of the institution. ये अभी तो हम equivalent certificate ले लेंगे, अगर वो देता है अपलोड कर रहा है, या हम उससे मंगा लेंगे फोन पे. अगर हमें कहीं पे भी डाउट लगता है कि हम उसकी बेस्ट 4 की उसमें प्रॉब्लम है, हम उसको ईमेल से भी मंगा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको. ये कोई आ गया है शायद. Arun, I have a doubt here, if I can. एक मिनट रुको. हाँ. बोलो. अच्छा, equivalent certificate till last year, it was not the head of the institution, but head of the department
in the university was supposed to issue the equivalent certificate looking at the syllabus and everything. तो वहां से आता था अप्रूवल और उसके बाद हम उसे मानते थे. तो इस बार अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे रहा है तो शुड बी एक्सेप्टेड. यस यस, बोल, ये तो यूनिवर्सिटी के बुलेटिन से उठाया मैंने. ये तो मैंने यूनिवर्सिटी के बुलेटिन से उठाया है कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड. तो वो बच्चे ने स्कूल लास्ट अटेंड किया होगा ना, वहां से आएगा ना वो तो. हाँ, क्योंकि इसीलिए साइमा मैम, क्योंकि पहले तक हम स्कूल से नहीं लेते थे. पहले तक हम उस बच्चे से कहते थे आप सिलेबस सबमिट करें, और उसके बाद जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, जो करंटली यूनिवर्सिटी के हेड्स हैं, उनसे हम अप्रूवल मांगते थे कि आप बताइए इसका सिलेबस अगर सेम है तभी हम अप्रूवल देंगे. हो ही नहीं सकता एडमिशन अगर अपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से मांग लोगे. एग्जैक्टली. इसीलिए आई वाज कंसर्न कि अगर ये बुलेटिन में मेंशन है देन डेफिनेटली वी विल एक्सेप्ट इट दिस वे ओनली. जी जी. तो अरुण सर, मेरे को भी एक चीज पूछनी है. ये जो आईडी मिलेगा, ये डिपार्टमेंट लेवल पे एक ही मिलेगा या मल्टीपल मिलेंगे? नहीं, एक ही आईडी मिलेगा डिपार्टमेंट में. उसमें मल्टीपल ही खुल सकता है. वो साथ में 4-5 कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर पे खोलना चाहते हैं, सेम यूजर आईडी पासवर्ड से वो खुल जाएगा. मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट लेवल पे लोग इन्वॉल्व है सबके साथ वो शेयर करेंगे. आप सबके साथ शेयर नहीं करेंगे, आप उनके साथ शेयर करेंगे. देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अल्टीमेट फिर अब यही बात आएगी कि responsibility lies with the convener. I am very blunt in this, with the convener, with the TIC. You can't be complacent कि हमने किसी को भी दे दिया. That is your responsibility. You have to keep the record of that. You can't say tomorrow कि मुझे नहीं पता जी किसने कर दिया होगा अप्रूवल. तो आप ये देखिए कि आप किसको ये दे रहे हैं पासवर्ड, यूजर आईडी, क्योंकि वो उसकी जो उससे अप्रूवल आ गई तो वो समय हम तो समझेंगे कि आपसे अप्रूवल आ गई. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस किस को शेयर कर रहे हैं. डॉक्टर साहब, पहले फ्लो चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद छोटी छोटी बात का क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे. पहले फ्लो चार्ट एक वन वे में आप चलिए. बट सर, इसी कंटिन्यूएशन में लाइक लास्ट टाइम आप बोल रहे थे कि मल्टीपल बना सकते हैं. आप संदीप जी क्वेश्चन आप लिख लीजिए और लास्ट में प्रिंसिपल साहब से डिस्कस हुआ था. प्रिंसिपल साहब ने कहा कि पूरे कॉलेज के यूजर आईडी नहीं बन सकते. ठीक है, तो इसीलिए सर पिछली बार भी एक एक ही बना था जिसका जो डिपार्टमेंट वाइज था. जी जी, वही बन सकता. कई सारे नहीं बने थे. सिर्फ बीए प्रोग्राम में क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो वी हैव 6 बनेगा. वो तो सबके कोर्स का ही बनेगा. हाँ हाँ. तो सेकंड जो है, द थियरी जो कंपोनेंट है, इट शुड बी एटलीस्ट थियरी प्रैक्टिकल कंपोनेंट जो है, रेशियो शुड बी 70-30, एंड इफ इट इज नॉट, then you have to convert into that ratio. Now we expect that the software would be doing it. Again, I am telling you, I have no idea that whether the university software is good enough to do it, convert it or not. So you have to be little cautious that whether it is converting that or not. थोड़ा सा 2-4 करके देख लीजिए सैंपल, जो पता चल जाएगा एक बार सॉफ्टवेयर में. अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो हो गया, काम ही खत्म हो जाएगा हमारा. तो this is what now we have to see that what are the eligibility criteria for computing best for language courses. So be honors English and be honors Hindi. तो ये तो एग्रीगेट ऑफ 45%, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 45% से हम कभी क्वालिफाइंग एग्जाम में हम मतलब उससे नीचे होगा तो हम देंगे ही नहीं. ठीक है. The applicant must have studied and passed English in qualifying exam and should include English for calculation of best 4%. तो आपको थोड़े से कंप्यूटेशन करके देखने हैं. ये फिर कोई आया है, ये ऐसे लगता है जैसे घर पे कोई किसी ने नॉक किया है. कोई आया है, कौन आया जी? प्रतिमा जी आई हैं. चलिए, यस, कमिंग बैक टू दिस नाउ. तो आप इंग्लिश को जो है उसने पढ़ा होना चाहिए, उसको पास होना चाहिए, और वो इंग्लिश को इंक्लूड करेगा बेस्ट 4 में. आप थोड़ा सा ये चेक करके देख लीजिएगा. हर कोर्स कन्वीनर को मेरे को एडवाइस है, मेरी एडवाइस है ये TICs को, कि ये पहले कुछ भी जो आ रहे हैं, जो शुरू के केसेस हैं, उनको चेक करके देख लें कि वो उनके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर वो यूनिवर्सिटी के साथ मैच कर रहे हैं, सारे फॉर्मूलाज मैच कर रहे हैं, तो फिर तो हमारा काम आसान हो गया. फिर हम वी विल गो अहेड विद दैट. सो देन सेकंड इज द मेरिट शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट 4 फीचरिंग 1 लैंग्वेज and 3 best academic elective subjects from among the subjects in the list A and list B. Now, what you need to understand is list A primarily contains of language, list B contains of elective subjects, but there are languages which are elective also, which are contained in list A. So मान लीजिए English core और English elective है, तो in that case English core will be taken as a language and English elective can be taken as a subject, right? तो लेकिन हिंदी core और English core ये दोनों सब 2 लैंग्वेज नहीं ली जा सकती. उसके लिए या तो हिंदी इलेक्टिव ले सकते हो या इंग्लिश इलेक्टिव ले सकते हो. नाउ देयर इज अ यूनिक थिंग वेयर वी कैन से कि एक बंदे ने इंग्लिश इलेक्टिव है और हिंदी कोर है. ठीक है,
तो वो एक लैंग्वेज में हिंदी कोर ले सकता है और इंग्लिश इलेक्टिव को वो ले सकता है, ठीक है, लैंग्वेज के तौर पे हिंदी ले सकता है और इलेक्टिव जो है वो इंग्लिश उसको इंक्लूड करके बेस्ट 4 में कर सकता है, क्योंकि कह रहा है कि मस्ट हैव स्टडीड इन पास्ड इंग्लिश इन क्वालिफाइंग एग्जाम एंड शुड इंक्लूड इन द बेस्ट 4। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। Then inclusion of any other subject other than those list A and list B in the combination of best 3 will lead to deduction of 2.5% subject per subject which included in the aggregate best 4। अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में नहीं है, ये आप देख लीजिए, ये लिस्ट ए है और ये लिस्ट बी है, तो ये लिस्ट ए में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये जितनी भी है इलेक्टिव है, कन्नड़ा कोर, कन्नड़ा इलेक्टिव, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव। तो इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज ए लैंग्वेज, right? And English elective can be considered as a elective subject। जो 3 elective subject लेने हैं उसमें वो elective subject count हो सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर करके दे रहा है उनका, तो nothing good like that, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन I again suggest you have to be careful। और इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो नहीं है लिस्ट और लिस्ट बी में से, तो हम उसको 2.5% की हम जो है डिडक्शन लगाएंगे बेस्ट 4 में। साथ ही अगर उसने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ा है तो उसकी 2% की एडवांटेज हो जाएगी। तो इंग्लिश की शायद हमारे यहाँ कट ऑफ कितनी है, 95.5 है चेतन, 95.5 है। तो मान लीजिए 95.5 न, मान लीजिए किसी ने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ा है तो उसकी जो इफेक्टिव कट ऑफ है वो 93.5 आ रही है, तो वो तब भी हमारे को 95.5 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उसके हमने देखिए 2% का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 8 नंबर हो गए, ठीक है, तो 8 नंबर की एडवांटेज हम दे देते हैं उसको। नाउ सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर हिंदी। सेम चीज है हिंदी के लिए कि उसको हिंदी जो है जो उसने पढ़ा है वो उसको क्या कहते हैं और इंक्लूड करना पड़ेगा उसको बेस्ट 4 में। और लेकिन जो इसमें अगर उसने हिंदी इलेक्टिव पढ़ा है तो वो 2% की हम उसको एडवांटेज दे देंगे। सेम प्रोसीजर चलेगा। तो अगर उसने हिंदी पढ़ा है, इलेक्टिव पढ़ा है, तो हिंदी की हम उसको एडवांटेज, अगर इंग्लिश कोर है और हिंदी इलेक्टिव है तो भी वो इंग्लिश में लैंग्वेज को ले लेगा और हिंदी इलेक्टिव को एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लेगा। सो दिस इज हाउ द बेस्ट 4 कैन बी कंप्यूटेड फॉर इंग्लिश और हिंदी। क्या इंग्लिश वालों को और हिंदी वालों को कोई कंफ्यूजन है इस कंप्यूटेशन में बेस्ट 4 में? नहीं, ये हमें ना शेयर कर देना है हमारे साथ। नहीं है, वो तो हम शेयर कर देंगे, ठीक है, वो तो शेयर कर देंगे। अभी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। नाउ वी मूव टू द ऑनर्स कोर्सेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। यार देखो यहाँ पर ये ऑनलाइन में भी लेट कौन आया? सॉरी, दरवाजे पे कोई आता है तो टाइम लग जाता है खोलने। नाउ दिस इज व्हाट ऑनर्स कोर्सेज में देखिए सेम चीज है, एक लैंग्वेज और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे टेकन फ्रॉम लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। नाउ inclusion of any subject other than those from list A and list B in the combination of best 3 will lead to deduction of। अगर हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ना लिस्ट A में है ना लिस्ट B में है उसको इंक्लूड कर रहे हैं बेस्ट 4 में। देखिए लिस्ट A में इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट, लैंग्वेज इलेक्टिव वाला, और लिस्ट B में अगर वो नहीं है तो हम उसको 2.5% की डिडक्शन लगाएंगे। अच्छा, आउट ऑफ द 3 academic elective subjects chosen above, one must be the concerned subject in which admission is sought, failing which a deduction of 2.5% will be imposed। अगर आपने ज्योग्राफी में एडमिशन ले रहा है तो ज्योग्राफी को इंक्लूड करना बेस्ट 4 में मस्ट है। अगर वो हिस्ट्री ले रहा है तो हिस्ट्री को इंक्लूड करना बेस्ट 4 में मस्ट है। सेम थिंग गोज फॉर द पॉलिटिकल साइंस। एंड इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी रेस्पेक्टिवली इन दीज कोर्सेज, तो आपको फिर से 2.5% की डिडक्शन और लगानी पड़ेगी। तो मान लीजिए किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट वो इंक्लूड करना चाहता है फिजिकल एजुकेशन, एक म्यूजिक, क्या वो ज्योग्राफी में एडमिशन ले सकता है? पॉलिटिकल साइंस में ले सकता है? हाँ, ले सकता है। लेकिन उसको क्योंकि उसने एक सब्जेक्ट जो है बेस्ट लिस्ट बी में नहीं है ना लिस्ट ए में है, तो उसका 2.5% कटेगा। और एक सब्जेक्ट क्योंकि ज्योग्राफी नहीं है बेस्ट 4 में, तो 2.5% और कटेगा। तो टोटल 5% की डिडक्शन उसके पास हो जाएगी। तो दिस विल बी दी ऑनर्स कोर्सेज। तो क्या ऑनर्स कोर्सेज वाले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वालों को ये बात क्लियर है?
Is there any confusion? History, है सर, ओके। पॉलिटिकल साइंस। एक क्वेश्चन है सर। हाँ, वो 2.5% जैसे एक माने किसी का फिजिकल एजुकेशन है जी, तो वो 2.5% उसके टोटल बेस्ट 4 में से 2.5% कटेंगे, किस में से यानी कि काटो? 10 नंबर कम हो जाएगा उसका। हाँ, आप किसी में से काट लो परसेंटेज, तो परसेंटेज 10 नंबर ही जाएंगे। मतलब 10 नंबर जाएंगे उसके बाद फिर अगर उसका पॉलिटिकल साइंस भी नहीं है तो फिर 10 नंबर और देंगे। बिल्कुल 5% कम हो जाएंगे। हाँ, ठीक है जी। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस डन। नाउ वी कम टू बीए प्रोग्राम। साइमा जी, जी सर। The merit shall be determined on the basis of one language, core, elective, functional, कुछ भी हो, and 3 best elective academic elective subjects as specified in list A and list B above। ठीक है, जो list A list B में जो भी है, लेकिन हमारे बीए प्रोग्राम में एक फ्लेक्सिबिलिटी है। We can include one non-listed subjects besides the elective subjects list A and list B। तो हम एक सब्जेक्ट ऐसा ले सकते हैं जो कि लिस्ट ए और लिस्ट बी में नहीं है। मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन है, उसमें बिना किसी डिडक्शन के हम ले सकते हैं। मतलब अगर उसने जो कि हम 2.5% इसमें काट रहे थे जब वो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स में जा रहा था, तो हम 2.5% काट रहे थे उसका, क्योंकि वो लिस्ट बी में नहीं है। लेकिन अगर वो बीए प्रोग्राम लेगा तो हम 2.5% नहीं काटेंगे। फाइन सर। हमारे बुलेटिन में यूनिवर्सिटी के जब नोटिफाई हुआ था तो उसमें लिखा हुआ था कि देयर विल बी चेंज ऑफ स्ट्रीम। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ चेंज ऑफ स्ट्रीम। मैंने इसको जब वो किया है, तो अगर मैं इसको हटाऊं तो नीचे लिखा हुआ है डिडक्शन अप टू 5% ऑफ बेस्ट 4 परसेंटेज में बी इम्पोज्ड इज देयर अ चेंज ऑफ स्ट्रीम। मैंने इसको छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? क्योंकि 10 सितंबर 2020 को एक मेल आई थी, प्रिंसिपल साहब की मीटिंग भी हुई होगी उसमें, प्रिंसिपल्स की मीटिंग में। तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इस बार जो है ना, कोई डिडक्शन ना करें चेंज ऑफ स्ट्रीम का बीए प्रोग्राम में। तो इसलिए आप इस बार कोई डिडक्शन ना करें। ठीक है। हमें जो भी करना है, हम अप्रूवल देंगे, जो भी उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, हमें उसके साथ में उसका नोट लिखना पड़ेगा। वो उसके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करेगा। स्टूडेंट विल कम टू नो कि हमने उसका क्यों पेंडिंग किया है, हमने क्यों उसका रोक के रखा है, हमने क्यों रिजेक्ट किया है, वो रीजन हमारा। Will the student be able to see it? यस। स्टूडेंट जो भी आप कमेंट लिखेंगे उसके पोर्टल पे, जो आप अपने पोर्टल पे जाके उस बच्चे के लॉगिन में मतलब जो लिखेंगे, वो स्टूडेंट अपने पोर्टल पे देख पाएगा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम में साइमा जी ने क्या लिखा है। तो उसके बाद है इफ मोर देन वन नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट 4, तो 2.5% कटेगा। उसमें तो देखिए कट ही रहा था, अगर कोई भी करते आप बाकी ऑनर्स कोर्सेज में 2.5%, लेकिन यहाँ पर एक नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट जो है वो अलाउड है। दूसरा करेंगे आप उस पर तो फिर 2.5% कटेगा। और चेंज ऑफ स्ट्रीम पे कोई नहीं कटेगा, चाहे वो कॉमर्स से आए, चाहे वो साइंस से आए, कहीं से बीए में आए, वो आ जाए। उसको हम कोई घर पे फिर आया विवेक रंजन, चलिए ऑफिस से हैं जी। सो बैक टू दिस प्रेजेंटेशन। सो बीए प्रोग्राम साइमा जी क्लियर? यस सर, फाइन। ओके, वी मूव टू इकोनॉमिक्स। गुरपिंदर जी, इसमें आप देखिए कि सेम प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मैथमेटिक्स, the applicant must have studied and passed mathematics at the qualifying examination for admission to BA Honors Economics। तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ा होना बड़ा जरूरी है और पास होना बड़ा जरूरी है। वो मैथ्स को इंक्लूड करे ना करे बेस्ट 4 में, लेकिन वो मैथमेटिक्स पढ़ा होना जरूरी चाहिए, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स इंक्लूड करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, उसमें जिसमें वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इकोनॉमिक्स का इंक्लूजन जरूरी है और मैथ्स का पढ़ा होके पास होना जरूरी है जी। और उसके अलावा अगर वो कोई सब्जेक्ट लेता है लिस्ट ए और लिस्ट बी के अलावा, तो 2.5% की डिडक्शन हम उस पर लगा देंगे, जैसे हम और कोर्सेज में लगा रहे हैं। तो इफ यू कंपेयर दिस बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स विद अदर ऑनर्स कोर्सेज, तो only addition is that there is a inclusion of mathematics, the condition that he should have studied and passed mathematics। कोई मिनिमम नंबर नहीं है उसके कि 50 होने चाहिए या 60 होने चाहिए, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। नाउ बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स लेते हैं। रुचि, आप देख रहे हैं शायद बीकॉम ऑनर्स में, या आर के अग्रवाल जी शायद बीकॉम देख रहे हैं? हाँ जी। तो बीकॉम ऑनर्स में
सबसे पहले वही बात है कि द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड मैथमेटिक्स। अब इन्होंने एक चीज और डाल दी, बिजनेस मैथमेटिक्स, जबकि बिजनेस मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में नहीं मेंशन किया हुआ है। तो मैथमेटिक्स ओब्लिक बिजनेस मैथमेटिक्स ओब्लिक इक्विवेलेंट पेपर एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 10 एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बीकॉम ऑनर्स। तो वो जो इक्विवेलेंट वाला है ना, वो जो इसमें जो हमारे यूनिवर्सिटी का जो बुलेटिन है उसमें अपेंडिक्स 10 दिया हुआ है। अपेंडिक्स 10 में दिया हुआ है एक ये अपेंडिक्स 10 है। तो इनके जो मैथमेटिक्स है ये दिया हुआ है हमारे अपेंडिक्स में कि जो महाराष्ट्र बोर्ड से है उसका टाइटल है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये इक्विवेलेंस है टू मैथमेटिक्स, ये दिया हुआ है। केरला बोर्ड का मैथमेटिक्स कॉमर्स या साइंस का ऐसे लिखा होगा उन्होंने टाइटल, तो वो इक्विवेलेंस है हमारे मैथमेटिक्स का। बेसिक मैथमेटिक्स है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, वो भी हमारे इक्विवेलेंट है मैथमेटिक्स के। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स ये नागालैंड बोर्ड है, वो इक्विवेलेंट है बिजनेस मैथमेटिक्स के। बाकी पॉलिटिकल साइंस के भी ये सब्जेक्ट्स हैं। जो अकाउंटेंसी का है इसी तरीके से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये भी इक्विवेलेंस है अकाउंटेंसी की। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स है विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू सीबीएस इकोनॉमिक्स, यहाँ पे साफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको भी हम आपको दे देंगे साथ में। Arun, what if the student belongs to some other board? Then we'll have to check the certificate given by the head of the institution whether the paper is नहीं, देखिए अगर वो सब्जेक्ट का नाम ही वही है जो दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी है नाम में, आप उसको बच्चे ने लगाया होगा, नहीं लगाया होगा, तो उसको संपर्क करना आप, जस्ट कांटेक्ट दैट स्टूडेंट कि भैया ये तुम्हारा इसके इक्विवेलेंट नहीं है, या अगर आप तो उसको एक मौका दे सकते हैं बच्चे को कि वो अगर वो ला सकता है तो वो लगा दे, नहीं लगा सकता वो तो ठीक है। क्योंकि बच्चों ने देखो अपनी मार्कशीट भी अपलोड नहीं की है जो उन्होंने, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने जब वो भरवा लिया फॉर्म, उसके बाद जब उन्होंने 5 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया तो बच्चे अपनी मार्कशीट भी नहीं अटैच कर पाए। तो बच्चे ही होते हैं, तो वी कैन जस्ट talk to them, and if they are providing us through email or WhatsApp, so we can approve it, otherwise we can decline it. Ultimately तो फिर डिक्लाइन ही करना है हमें, नेक्स्ट कट ऑफ से पहले तो सेटल करना ही है उसका स्कोर। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है कि हमें जो करना है नेक्स्ट कट ऑफ से पहले करना है, तो उस बच्चे के पास ज्यादा टाइम होगा नहीं। तो पहले अगर मान लीजिए कि उसने 2 दिन में 14 तारीख तक हमें बोल दिया, तो उसको हमें 19 तारीख तक 17 तारीख तक 17 का सैटरडे है, तो 17 तारीख तक हमारे को सुबह 10 बजे डिक्लेयर करने से पहले उसका हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट इज कि जो सिलेक्शन जो शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 1 लैंग्वेज 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स। अब इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है स्पेसिफिकली बीकॉम ऑनर्स के लिए बोला हुआ है, हम लिस्ट बी में तो बाद में जाएंगे, पहले उन्होंने बोला हुआ है कि एक तो लैंग्वेज ले लो हिंदी इंग्लिश की, और इनमें से किसी भी 3 का कॉम्बिनेशन ले लो, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स। तो बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के इक्विवेलेंट, इन 3 मतलब इसमें से बेस्ट 4 हम निकाल लेंगे। और मैथमेटिक्स बीकॉम ऑनर्स के लिए उसे मैथमेटिक्स पढ़ा और पास होना जरूरी है, या बिजनेस मैथमेटिक्स जो अपेंडिक्स में हमने देखा अलग अलग 3-4 बोर्ड्स हैं उनका। और अगर इसके अलावा वो कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूड करता है लिस्ट बी में, जो लिस्ट बी में तो है, ठीक है, अदर देन दोस्त, तो हम 1% की डिडक्शन करते हैं। लेकिन अगर कोई ना लिस्ट ए में है ना लिस्ट बी में है, तो हम फिर 2.5% की करेंगे। मान लीजिए अभी एक मेरे पास मैसेज आया था किसी का कि मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग हम इंक्लूड करेंगे तो उसमें हमारी कितनी परसेंटेज डिडक्ट होगी। तो मार्केटिंग देखिए, इट अपीयर्स टू बी कॉमर्स सब्जेक्ट, बट मार्केटिंग इज नॉट गिवन इन द लिस्ट बी। इफ मार्केटिंग वाज गिवन इन लिस्ट बी, then 1% reduction would have been made. But since marketing is not being given in list B, then deduction of 2.5% would be made. तो हो सकता है कि कॉमर्स का सब्जेक्ट लगे, लेकिन वो कॉमर्स का सब्जेक्ट लिस्ट बी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम उसको पेनलाइज करेंगे 2.5% से। क्लियर रुचि? Yes, Arun.
We'll also see list A, but right? लिस्ट ए में तो देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट ही ले पाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा है, वो लेना चाहता है इंग्लिश इलेक्टिव, मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। तो क्या हम उसको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी, ये 3 सब्जेक्ट हैं, तो क्या हम उसकी बेस्ट 4 कैसे कंप्यूट करेंगे? देखो इस केस में क्या होगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज तो एक चली गई, इंग्लिश इलेक्टिव हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है अब ये कह रहा है कि हम उस पे ना इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी अदर देन दोज मेंशन अबव इन द कॉम्बिनेशन, तो हम उसको 2.5% की डिडक्शन लगाएंगे। बड़ा यूनिक केस है ये, मतलब कॉमर्स के केस में हम लिस्ट ए का सब्जेक्ट नहीं ले सकते एक इलेक्टिव के लिए, लिस्ट बी का ही लेंगे, वो भी 1% डिडक्शन के साथ। मतलब मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स के अलावा हम कुछ भी नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो हम वो देखेंगे लिस्ट बी में है या नहीं है। अगर लिस्ट बी में है तो वो 1% डिडक्शन होगी, अगर लिस्ट बी में नहीं है, ना लिस्ट ए में है, तो 2.5% की डिडक्शन होगी। Okay. Yeah. Now same thing is there in बीकॉम। बीकॉम में आरके अग्रवाल जी, सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपका मैथमेटिक्स पढ़ा होना जरूरी नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ा और पास होना जरूरी है, बाकी सब सेम है। होप इट इज क्लियर टू यू आल्सो। ठीक है, हैं आवाज सुनाई दिया? हाँ जी, हाँ जी। नाउ दिस वाज स्टेप 1, कीप इन माइंड। किसकी आवाज है? ठीक है, तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, भाई किसकी आवाज आ रही है? आरके अग्रवाल जी, आप बंद कर लो अपना माइक, आप पे डाउट था मेरे को। ठीक है, नाउ बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी हो गया, बीकॉम ऑनर्स भी हो गया, बीकॉम भी हो गया। अब हम स्टेप 2 पे आ जाते हैं। नाउ स्टेप 2 इज, आपने करना क्या है, ये टियर 1 में ही चल रहा है, ये टीचर इंचार्जेस ने सब देख लिया। अब ये देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं या नहीं है। अगर हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है, जो उनके फील्ड है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या मार्कशीट नहीं है, तो अगर मार्कशीट नहीं है तो हम पोर्टल पे, एक डोमेस्टिक पोर्टल हमने बनाया है, उस पे आप लिंक क्लिक करेंगे और एक एपीआई लिंक आपके डैशबोर्ड में भी दिया होगा, जहां आपका वो खुलेगा ना कल, तो उसमें एक एपीआई लिंक दिया होगा सीबीएसई का, वो आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा एक्सेस कर सकते हैं रिजल्ट को सीबीएसई के। तो वो आप वहीं पे डाल के देख सकते हैं उस बच्चे का, उसका रोल नंबर डाल के, अगर वो वहां पे वेरीफाई हो जाता है जो रिजल्ट उसने अपलोड किया हुआ है, तो आपको उसकी मार्कशीट की भी जरूरत नहीं है। आप कमेंट्स में लिख देना, बेशक अपने रिकॉर्ड के लिए लिख लेना कि भाई रिजल्ट वेरीफाइड ऑनलाइन। अगर उसने मार्कशीट नहीं अटैच की, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वो नहीं है कि बच्चे को हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि मार्कशीट दे भाई, तू अपनी मार्कशीट लगा, कोई जरूरी नहीं है। जब वो आएगा तो अब हम ले लेंगे उससे, जब वो फिजिकल फॉर्म में कॉलेज आएगा बाद में। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि वो कोई दूसरे डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वो सर्टिफिकेट लगा है कि नहीं लगा है, वो वैलिड है नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेज पे देख लेंगे। तो आपने अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ है तो आप उसको कांटेक्ट करेंगे थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप, उसको बोलेंगे कि भैया तू ये सबमिट कर दे, उसको फोन नंबर दिया होगा, फोन पे कर लेंगे। आप सभी लोग एक सिम कार्ड ले सकते हैं एक्स्ट्रा, और वो कॉलेज उसको रिम्बर्स करेगा उसके एक्सपेंसेस। आप रिचार्ज करा सकते हैं 1 महीने के लिए, वो कॉलेज के खर्चे में जाएगा, और आप उसको सिम को आप फेंक सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रखना चाहते हैं रख सकते हैं उसके एडमिशन प्रोसेस के बाद। ये इसलिए कि ताकि आपका जो रेगुलर फोन नंबर है वो स्टूडेंट्स के पास ना जाए, जिससे वो आपको बाद में भी परेशान करते रहते हैं। तो आप चाहें तो अपना कोई भी किसी सेकंड सिम में डालना है तो उस सिम को आप डीएक्टिवेट कर दें। जब ऑफिस, मतलब आपको लगता है कि अगर वो आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपको किसी भी टाइम पे फोन ना करें, तो दैट यू कैन डू। आप एक सिम ले सकते हैं और वो कॉलेज रिम्बर्स कर देगा आपको।
तो अगर तो ये बात क्लियर है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, सिर्फ मार्कशीट मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिजल्ट वेरीफाई करा रहे हैं, हम उसको ओके कर देंगे। अगर कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो हम उससे मंगा लेंगे कॉन्टैक्ट करके। अब बारी आती है कि अगर सारे डॉक्यूमेंट अटैच्ड हैं और वो कैंडिडेट जो है ही बिलोंग्स टू SC ST PWD या EWS कैटेगरी, कोई भी एक कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो हम उसकी मार्कशीट ऑब्वियसली ऑनलाइन देखेंगे, चेक करेंगे। एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक पोर्टल, यहाँ पे मैंने डोमेस्टिक पोर्टल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी है। डोमेस्टिक पोर्टल हमने इसलिए यूज किया है कि हमारा अपना भगत सिंह का पोर्टल बनाया है हमने, तो हम उससे भी हम मार्कशीट चेक कर सकते हैं। वैसे तो API लिंक दिया होगा, उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए अलग अलग बोर्ड हैं, उनके लिंक हम बना के दे रहे हैं आपको, उसमें अटैच कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होगा कि पास्ट डेटा भी चाहिए होता है कई बार, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पोर्टल है वो इस तरह से कुछ होगा, ये वाला। उस पोर्टल का नाम है www.sbscverification.in। सो हाउ इट वर्क्स, लेट मी शो यू। ये हमारा पोर्टल है। ये आप जब खोलेंगे sbscverification.in, आपको इंटरनेट सब मिला ही होगा। आप जब डालेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC है, जो कास्ट सर्टिफिकेट लोग वेरीफाई करेंगे। तो ये आपको पूरी जो सेंट्रल लिस्ट है वो डाउनलोड होके मिल जाएगी। आपको जो कास्ट चेक करनी है, दिल्ली की है, दिल्ली में देख लीजिए कौन सी कास्ट है। उसके बाद आपको यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना है, तो यूपी के लिंक पे चले जाइए, वो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालिए, आपको वो दे देगा। यूपी में 2 तरह के आते हैं, यूपी ई डिस्ट्रिक्ट से आता है, यूपी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आता है। हरियाणा का है, हरियाणा का क्लिक करिए, ई दिशा वाला यहाँ पे डालिए, सर्टिफिकेट आपको चेक कर लेंगे, आपकी ऑनलाइन है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स के हैं, ये कास्ट के सर्टिफिकेट्स हैं। दिल्ली का है, दिल्ली में आप जाइए, दिल्ली में थोड़ा सा आपको ये जाना पड़ेगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, अप्लाइड फॉर आप जाएंगे, इसमें कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC, जो एप्लीकेशन नंबर है बच्चे की जो था वो आप डाल देंगे तो वो उससे दिखा भी देगा आपको कि वो सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है। So this will be done by the respective caste coordinators. ये कन्वीनर, कास्ट कन्वीनर है जो वो करेंगे। ये जो रिजल्ट है ये इस तरह से आएगा। ये हम जब लिंक क्रिएट करेंगे, CBSE के कुछ आर्काइव रिजल्ट्स भी हैं, तो इसमें आप पोर्टल में आप देख सकते हैं, हमने 2004 से लेके 18 तक के आर्काइव रिजल्ट्स हैं। तो कोई बच्चा मान लीजिए 18 का आया है, 17 का आया है, तो वो रिजल्ट भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इससे। यूपी बोर्ड के भी हैं, यूपी बोर्ड का ये लिंक काम नहीं कर रहा आर्काइव वाला। तो हरियाणा बोर्ड का है, वो हम अभी, ये आप रोल नंबर डाल दीजिए, हरियाणा बोर्ड का भी 2020 का जो रिजल्ट आया, ये रोल नंबर डालेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। राजस्थान बोर्ड भी है, ICSE रिजल्ट भी है। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि if we at our level have checked the eligibility criteria, फिर वही कास्ट का जो है वो किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो मतलब हम बताएंगे, हम पर्टिकुलर जैसे कि विनय सर हैं जो OBC के हैं, या फिर बुलाना? आपको कुछ नहीं बताना, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये देखो क्या लिखना गया है, जो ये जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट जो भी होंगे, आपने मार्कशीट चेक कर ली, मार्कशीट वेरीफाई होगी ना। अगर उसकी मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको वहीं पे रोक लीजिए, ठीक है। अगर वो फेक लग रही है, वो बोर्ड्स फेक लग रहे हैं, तो आप वहीं पे रोक लीजिए, ठीक है। अगर वो मैच कर गया, मार्कशीट मैच कर गई, तो आपका काम अब उसका मतलब है कि वो उस कैटेगरी में उस परसेंटेज में आ रहा है, उसकी सर्टिफिकेट वो जो मार्कशीट है उसकी वो वेरीफाई हो रही है ऑनलाइन। So we will submit it. We will submit it then. Okay, fine. With the marks, category certificate pending. Category certificate verification pending. ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पे वेरीफाई होंगे। ओके, थैंक यू। तो ये है कि अगर वो नहीं है, अगर वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा नहीं है, तो उसमें सिर्फ हमारे को मार्कशीट देखनी है, उसकी एलिजिबिलिटी है वो मार्कशीट, हम उसकी डोमेस्टिक पे देख लेंगे। If I will submit, I will not say कि कुछ पेंडिंग है इसका। अगर कुछ पेंडिंग है तो हम मेंशन करेंगे, नहीं तो हम उसको क्लियर कर देंगे। This will be done at step 2 at tier 1, जो TICs का रोल है, जो कोर्स कन्वीनर्स का रोल है। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, मेरा भी एक डाउट था अत्री जी।
जैसे हम ये चेक करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर सपोज कि नहीं अटैच है उस स्टूडेंट का, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हम उसको कांटेक्ट करेंगे, तो क्या हमें ही टाइम देना होगा उसको कि इतने टाइम के विद इन तुम सबमिट कर दो? बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसको बोलना है कि भाई फटाफट कर लो, अगर वो नहीं करता तो आप ही को वहीं पे रिजेक्ट कर देना, वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा ही नहीं। So, is it the TICs who will do it or the coordinator for SC ST OBC? ये TIC लेवल पे, डॉक्यूमेंट होना नहीं होना वो TIC लेवल पे। Okay, fine, fine. सर एक चीज, और ये टाइम हम अपने हिसाब से देंगे उसको, या फिर है कि हमें एक दिन का कुछ ऐसा स्पेसिफाइड तो नहीं है टाइम? जितनी जल्दी बच्चा दे दे वो दे दे, उसको बोल देना भाई तू नहीं करेगा तो फिर डिक्लाइन हो जाएगा, और क्या कर सकते हो उसको ये बता देना कि सर जैसे पिछली बार था कि आपको जो है इस पर्टिकुलर पीरियड तक का जो है मतलब से कि मार्च तक जो है आपका न्यूली मेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इज इट देयर स्टिल कास्ट सर्टिफिकेट? आई विल कम। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, 31 मार्च 2020 के बाद इशू होना चाहिए ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। SC ST में ओबीसी में कब से ये होना चाहिए अरुण सर? 31 मार्च 2020 के बाद इशू होना चाहिए। लेकिन देखिए मेरी उससे भी बात हुई थी डीन एडमिशन से, शोभा बगई जी से, तो उन्होंने यही बोला था। मैंने कहा भाई एक बात बताइए, कास्ट कई स्टेट्स क्या करती हैं, कास्ट सर्टिफिकेट तो एक बार इशू कर देती हैं ओबीसी का, और जो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया है ना, जो नॉन क्रीमी वाला है, वो रिवाइज करती हैं वो। तो आप कोई बच्चा जाता है, मान लीजिए मेरा 3 साल 4 साल पुराना या 5 साल पुराना सर्टिफिकेट है, तो वो कास्ट तो डिटरमिन हो गई मेरी उस सर्टिफिकेट से, लेकिन क्या मैं उस नॉन क्रीमी में हूं, वो मेरा लेटेस्ट इनकम क्राइटेरिया डिसाइड होगा। तो वो जो इनकम क्राइटेरिया होता है ओबीसी में, वो पेरेंट्स की इनकम से डिसाइड होता है। ईडब्ल्यूएस में पेरेंट्स और खुद की इनकम से भी डिसाइड होता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। हाँ तो अच्छा एक चीज ये बताइए अरुण जी कि बोलो। हाँ एक चीज ये बताइए कि मान लिया जाए कि बच्चे ने जो है कि उसका कास्ट, जैसे अभी आप क्वेश्चन बता रहे थे, उसका कास्ट ओबीसी में है, ठीक है, कास्ट ओबीसी में है, और उसको अभी उसने अप्लाई कर दिया है ओबीसी के लिए, और उसके फादर का जो इनकम है वो इनकम कब का देखना पड़ेगा? वो तो इस जो अभी जो उसने अप्लाई किया होगा। सर एक बात मैं यही बता रहा था, इसीलिए मैं चाह रहा था कि जो जिस कैटेगरी का होता है ना, उसको पता होता थोड़ा सा ये चीज है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ ओबीसी में स्टिल कि ओबीसी का जो इनकम क्राइटेरिया जो होता है, वो आपके एवरेज इनकम ऑफ लास्ट 3 इयर्स देखी जाती है। ये मैंने यूनिवर्सिटी में भी बोला था कि कहीं भी आप एनसीबीसी की आप उस पर गाइडलाइंस पे देखेंगे, जिसमें सैलरी इनकम इंक्लूड नहीं होती और एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड नहीं होती, और इन दोनों इनकम को एक्सक्लूड करके, और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में सिर्फ ग्रुप ए ऑफिसर या ग्रुप बी ऑफिसर, दोज हु हैव बीन प्रमोटेड टू ग्रुप ए ऑफिसर बिफोर द एज ऑफ 40 इयर्स, वो जो हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर इसका मतलब मान लीजिए कोई ग्रुप सी ऑफिसर है, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर में कोई क्लर्क है, या कोई हेड कांस्टेबल है, या एएसआई है, या इंस्पेक्टर लेवल तक है, वो ग्रुप सी पोजीशन में है। वो उसकी इनकम कुछ भी हो, चाहे 10 लाख हो, 11 लाख हो, 12 लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो है नॉन क्रीमी में आता है। आर्मी में अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल तक नॉन क्रीमी में आता है। लेकिन ये सर वो जो हमें इनकम सर्टिफिकेट, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट इनकम सर्टिफिकेट में प्रोड्यूस करता है और वो अभी अप्लाई किया हुआ है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट के लिए, तो इनकम सर्टिफिकेट क्या वो ग्रुप सी और ग्रुप ए उसमें लिखा रहता है कि मेरे फादर ग्रुप सी? देखिए वो मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं मैं कि कई बार क्या आपने उसके फादर का ऑक्यूपेशन में आपको बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उसके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन ऑफ फादर हेड कांस्टेबल इन दिस पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये इम्प्लाइड है। या आर्मी में इम्प्लाइड है कि भाई वो ग्रुप सी है और वो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप उससे लेटेस्ट मंगवा रहे हो। मुझे ये लगता है अनफेयर लगता है थोड़ा कि तो उन्होंने कहा शोभा बघेली जी, देखिए जी आपका कॉलेज है, आपको दिख रहा है जेन्युइन है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो आप अगर वो बच्चा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है उसके पास, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट है जो इनकम वाला है वो लेटेस्ट दे रहा है, ठीक है, वो लेटेस्ट दे रहा है, इनकम सर्टिफिकेट वो लेटेस्ट दे रहा है, तो आप उसको अप्रूवल दे दीजिए, कोई उससे एडिशनली मंगा लीजिए, उससे आप वो ईमेल पे, और वो डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिए, साथ में लिख के आप उसको आगे भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। अरुण सर, मैं यहाँ पे कुछ बोलना है। एक्चुअली लास्ट टाइम हमने क्या किया था, पहली बात तो नॉन क्रीमी लेयर का हमने सर्टिफिकेट से देखा था, ठीक है,
इनकम वाले पे हम लोग नहीं गए थे। इन केस उसके पास बच्चे के पास नॉन क्रीमी वाला लेटेस्ट नहीं है, हमने उसको बोला था कि अप्लाई करके ला, और जो रिसिप्ट एप्लीकेशन की, चाहे अभी कभी अप्लाई करते ऑनलाइन हो जाते हैं आजकल, वो रिसिप्ट होनी चाहिए, उसके बेस पे फिर हम उसको कंडीशनल हमने लास्ट में एडमिशन दिया था। वो आप दे सकते हो, मैंने क्या कहा, एक्नॉलेजमेंट लेटेस्ट, हाँ एक्नॉलेजमेंट लेटेस्ट आप लगा लो अगर करना चाहते हो, लेकिन ये देख लो कि उसमें क्या वो जेन्युइनली आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब कास्ट और क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। अगर वो अप्लाई कर रहा है नॉन क्रीमी लेयर, उसने कहा है कि मैंने अप्लाई कर दिया, तो प्रोविजनल एडमिशन है, कोई बात नहीं, कैंसिल कर देंगे, नहीं देगा तो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इनकम सर्टिफिकेट देखने लगे ना, आप ये मेल मंगा लीजिएगा कि आई विल प्रोड्यूस, उसको सिंपल से बोलो, आई विल प्रोड्यूस माय इनकम सर्टिफिकेट और या माय नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, एट द टाइम व्हेन आई कम टू द कॉलेज, अदरवाइज माय एडमिशन कैन बी कैंसिल्ड, आई अंडरस्टैंड दैट एडमिशन कैन बी कैंसिल्ड। वो मेल मंगा लीजिए उससे। अब एक चीज ये जो ईमेल है, ये यूनिवर्सिटी बुलेटिन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर वो फिजिकली बाद में अगर नहीं लाता तो कैंसिल हो जाएगा सर्टिफिकेट। और सर वो तो है कि उसको जेल भी हो जाएगी, तो बताना तो पड़ेगा ना उसको, वो बता दो ना, आप उससे मंगा रहे हो सर्टिफिकेट। हाँ उसको बताएंगे, क्योंकि हम जो हम कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी बुलेटिन में नहीं लिखा हुआ कि हम उसको जो है वो करेंगे, क्या कहते हैं, इस तरह से मेल से मंगा लेंगे, वो यूनिवर्सिटी बुलेटिन में नहीं है। वी आर डूइंग इट, वी आर फैसिलिटेटिंग दैट कोई जेन्युइन कैंडिडेट कोई ना डिनाई हो। नहीं तो आप करना चाहेंगे, जब आप करने बैठेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। उसको फोन करेंगे, मेल करेंगे, ये तो लिखा है, ये तो है। हाँ अरुण सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी अरुण सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी राजीव जी। हाँ सर, ये है कि ओबीसी कैटेगरी में इस बार एक रिलैक्सेशन और रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बिहार से जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन लेने आ रहे हैं, चाहे वो SC ST में भी हो, क्योंकि पिछले 1 महीने से बिहार का जो प्रशासन है वो चुनाव मोड में है, तो वहाँ इस तरह के ज्यादातर जो अधिकारी हैं जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हैं वो अभी पेंडिंग है, और ये अगले 1-1.5 महीने तक पेंडिंग रहेगा। तो जो बच्चे बिहार से पुराने ओबीसी सर्टिफिकेट भी लेकर आ रहे हैं, उनको जो है प्रोविजनल एडमिशन देना है, उसको भी लेकर जो है, और एडिशनल जब चुनाव की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाए तब उसके बाद जाकर वो अपना जो है फ्रेश ओबीसी सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो हम लोगों को इसमें ये करना होगा कि उनको 15 से 20 दिन का समय देना होगा। राजीव सर, वो बात आपकी ठीक है, पेंडिंग पड़े केस, बट एटलीस्ट वो नए के लिए अगर उसके पास नहीं तो अप्लाई करे, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जरूर हो कि उसने अप्लाई किया। वो बिल्कुल सर, ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं। वो एक्नॉलेजमेंट चाहिए, एक्नॉलेजमेंट इज मस्ट आई थिंक। और पिछले साल का फाइनेंस, पिछले साल का फाइनेंस, जो भी रेस्पेक्टिव कन्वीनर्स हैं वो इसकी आप प्रॉपर नोटिंग बना लीजिएगा कि देखिए ऐसा है, यूनिवर्सिटी बार बार इंसिस्ट करती है, सरदाना सर भी इस चीज को इंसिस्ट करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डिसीजन हो वो डॉक्यूमेंटेड डिसीजंस हो, कोई डिसीजन ऐसे ना हो कि जिसपे हमारे को कल को बाद में कोई क्वेश्चन करे। तो इसीलिए जो भी कन्वीनर है, इफ दे वांट टू टेक डिसीजन, ये नहीं है कि एक्स ने बोल दिया, वाई ने बोल दिया तो हमने मान लिया, कि आपने बोल दिया कि एक्नॉलेजमेंट हो या किसी और ने बोल दिया। तो कन्वीनर, अगर कन्वीनर को ये लग रहा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट कन्वीनर को ये लग रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए किसी पर्टिकुलर, जैसे राजीव जी ने ये बात बताई, तो वो उसको नोट करके और एक नोट बना के एक डाल दें, हमारे पास भी एक CC कर दें और प्रिंसिपल के पास भी कर दें। नहीं, मैं तो अरुण जी, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, ये कन्वेनर को देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम कन्वेनर बना, टू बी फ्रैंक, तो हमें हो सकता है कि बहुत टेक्निकल चीजों की आइडिया ना हो। आदमी आप पूछ है ना, हम हैं आपके साथ मदद करने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि एक जो है कि इस तरह की मीटिंग कर ले जाए प्रिंसिपल सर के साथ, और जो भी है इसमें जिनको इनके ओबीसी की जानकारी है, एक जो है कि कॉमन जो है कि एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाना चाहिए, ताकि उसको पॉइंट वाइज नोट करके तभी हम किसी को आगे बढ़ाएंगे, या फिर उसका रिजेक्ट करेंगे, या फिर जो भी करेंगे। जो क्लियर केसेस हैं उनको तो कर देंगे आप, जो केस टू केस, अभी बहुत सारे केसेस आएंगे, आप देखोगे कि बल्कि मतलब मुझे लगता है कि 60% केसेस ऐसे आते हैं जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। 40%, 30 से 40%, राजीव मेरे साथ एग्री करेंगे कि राजीव इतने उसमें वो रहते थे परेशान इस चीज के लिए कि भाई जो जेन्युइन जो बच्चे आ रहे हैं, वो जिनका सब कुछ क्लियर है, वो बड़ा ही कम नंबर होता था। एंड वो राजीव जी खुद अपना थोड़ा इसको रिसर्च करके और चीजों को डिस्कस करके फिर करते थे। तो ये तो हो जाएगा, बैठ के साथ में हम डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है उस बात में। सर एक चीज कल 9 बजे बात कर सकते हैं इस बार, हाँ एडमिशन से पहले। आप शुरू तो करिए, वो शुरू करेंगे तो जो मैंने बताया, जो क्लियर है उसको क्लियर करिए। जो जिसका 31 मार्च 2020 के बाद सर्टिफिकेट इशू है, नॉन क्रीमी है, तो उसको अप्रूवल दीजिए। बाद में जो है उसकी इनकम सर्टिफिकेट मंगाइए, इनकम सर्टिफिकेट उसका लेटेस्ट होगा,
कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, कोई बात नहीं, उसको भी हम करने की वो करते हैं। तो हमें सेटिस्फाई करना है। देखिए मेरा पर्पस ये है, शुरू से रहा है कि जेन्युइन बच्चा जो है, जो भी किसी भी कैटेगरी का है, उसका जेन्युइन उसको बेनिफिट मिले, कोई एडवांटेज ना ले जाए दूसरी कैटेगरी में आके। अरुण सर, यही जेन्युइन की ही बात सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि जेन्युइन जो हम चेक कैसे करें, वो हमारे पास क्या मैकेनिज्म होगा? जो सर्टिफिकेट सही है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जेन्युइन आप चिंता मत करिए, वो मैकेनिज्म आपको मैं बता दूंगा। हाँ, तो वो सारे मैकेनिज्म हमारे पास आएंगे, कल आप आएंगे, कल मैं ऑफलाइन में आपको ये मैकेनिज्म बता दूंगा, ठीक है? सर मुझको भी एक चीज पूछनी है इसमें सर, कुछ और चीजें सर एक चीज मैं पूछना चाहती आप बोल लीजिए पहले। हाँ सर, ये है कि जब हम वेरीफाई करेंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट भी हमको देखना है कि वो है या नहीं है, ये तो हमें देखना है ना, सिर्फ हमें ये देखना है कि वो कब का है या कब का नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं तो आपको लगा हुआ है आप वो बेसिकली तो अगली स्टेज पे ही जाके चेक हो। ठीक है, आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो डबल चेक होना ही है, जितना अच्छा है जितनी लेवल पे चेक हो जाएगा। फाइन फाइन फाइन। मैं तो अरुण सर एक चीज ये चाहूंगा, कॉलेज की तरफ से एक प्रॉपर हमको जो है कि डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए, ताकि उस जैसे कि अभी एक चीज आप टेक्निकल चीजें बता रहे थे कि 31 मार्च 2020 के बाद ओबीसी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, लेकिन 31 मार्च के पहले से ही, मतलब 31 मार्च के आसपास से ही हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की कंडीशन क्या थी। पूरे कंट्री लॉकडाउन में चल रहा था, बहुत दिनों तक लॉकडाउन में चला। उसके बाद अभी भी कहीं पर जो है कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, कहीं पर कुछ है, तो बहुत सारी की समस्या आ सकती है। कैंडिडेट ऐसे भी पिछले सर्टिफिकेट के भी आधार पर वो अप्लाई कर सकता है, वैसे केस में हम क्या करें? इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मिल जाए हमें। देखिए ऐसा है कि ये चीज ना यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग में भी हुई थी, उस दिन सरदाना सर भी थे, कुमार भास्कर भी थे, हमारे एओ साहब भी थे, यही बोला गया था उनको जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली। तो शी सेड कि मैंने कमीशन में बात की and they didn't agree to it and they didn't give me in writing, so therefore we are continuing with this same। कहता हमने उनसे पूछा कि भाई आप हमें रिलैक्सेशन के लिए लिख दीजिए कि हम कर देते हैं, तो कहती है हमारे को कमीशन ने नहीं लिख के दिया, ना ही हमें बोला, तो इसीलिए हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब बताइए, जब यूनिवर्सिटी इंडिफरेंट हो रही है, तो मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद जो है वो करेंगे नहीं, अब लॉकडाउन में सफिशिएंटली खुल गया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बच्चे ने कर लिया होगा, बट मैं आपकी बिल्कुल बात समझता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये इस तरह की समस्या आई होगी। कोई बात नहीं, मैं कल आपसे बात करता हूँ इस बारे में। क्या देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बातचीत तो हम लोग हमेशा करते रहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन करूंगा या सर को भी फोन करूंगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। क्या है कि मैं जिस समय मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा वो समय आपको कॉल कर रहा हूँ, आपसे बात ना हो पाए, आप बिजी हो या फिर फोन में लग रहा हो, तो हमें जिसके आधार पर मैं उसको कहूंगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट आई सर्टिफाई दैट दिस इज, जो भी उसका कमेंट होगा मैं कमेंट उसमें लिखूंगा। ये तो यूनिवर्सिटी ने जो हमारे को दे रखा है, यूनिवर्सिटी ने हमारे को गाइडलाइंस भेज रखी है, यूनिवर्सिटी ने हमारे को बुलेटिन भेजा हुआ है, उसके अलावा हम उसकी कॉन्ट्राडिक्शन में हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी एडिशन में हम कर सकते हैं। हाँ, बस उसी के एडिशन में, कंट्राडिक्शन में बिल्कुल नहीं हमें जाना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्शन है, कोई कल अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम कह देंगे कि हम यूनिवर्सिटी के इस आर्टिकल नंबर इसके अकॉर्डिंगली हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बस इसमें यूनिवर्सिटी करी, इसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वो सर हमारे पास कुछ एक प्रॉपर होना चाहिए, ओबीसी का एक अलग कॉलम बना के कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चाहिए। अभी आप देख रहे हैं इसके नीचे है, अभी मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, अभी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुई एक्चुअली। हाँ, लेकिन कुछ जोड़ दूं सर? अरुण एक क्वेश्चन है मेरा, एक मिनट मैं कुछ जोड़ दूं सर ओबीसी वाले में? अरुण एक मिनट, जी बोल दीजिए। अरुण नहीं जाएगा, कौन बोल रहे? राजकुमार पहले यार प्रेजेंटेशन खत्म कर लो, आई थिंक ये क्वेरीज का सेशन बाद में कर ले, अदरवाइज प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो पाएगी ऐसे तो। एक अर्जेंट क्वेश्चन है मेरा, प्रेजेंटेशन एक बार खत्म कर लेते हैं और उसके बाद क्वेरीज और जो भी डाउट्स हैं उनको बाद में सर कुछ चीजें बहुत क्रूशियल है, साथ साथ होनी जरूरी है। अरुण फिर खत्म नहीं होगी यार, 10-10 मिनट मीटिंग चलती रहेंगी फिर तो। अरे राजकुमार अग्रवाल को बोल लेने दो यार। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है मेरा कि जो जनरल कैटेगरी है तो उसमें सिर्फ मार्कशीट चेक करनी है उनको, और कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, डॉक्यूमेंट की तो रिक्वायरमेंट है जो विंडो दी हुई है, पर मार्कशीट अगर गायब है तो उसको आप ऑनलाइन चेक करके उसको आप कर सकते हैं। मार्कशीट नहीं है, मार्कशीट चेक कर ली, उसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें? उसमें आप देखना ना, खोल के देखना, उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसका। नहीं, अगर कैटेगरी नहीं है, जनरल कैटेगरी है तो
जनरल कैटेगरी तो मार्कशीट अगर उसकी ऑनलाइन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटेस्ट बोर्ड का है, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस सिर्फ मार्कशीट चेक करनी है जनरल मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बेस्ट फोर सब चेक करना है ना, उसी से अप्रूव होगा। बेस्ट पहले जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10 सर्टिफिकेट सब चेक करते थे, तो उसको वो सब नहीं करना। अगर वो सब नहीं करना। सर्टिफिकेट में, अगर 12th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ का है तो ठीक है, नहीं तो 10th का सर्टिफिकेट तो होगा ही, लगाया होगा वो। भाई देखो आपने 10th का डेट ऑफ बर्थ देखोगे ना, आप उसमें जो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं उसकी एक बार फोटो से शक्ल भी देख लेना, 10th वाले सर्टिफिकेट पे लगी है वही बच्चा है, तो डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है ना, मतलब। हाँ वो, अरे मैंने वही तो कहा आपको, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट नहीं अटैच है वो मंगा लो, ठीक है। जो उसका फोटो दे वो उससे मैच कर लो कि हाँ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है तो अगर लग रही है तो। अगर भाई मार्कशीट अगर गायब है तो मार्कशीट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक जैसे सर पहले माइग्रेशन वगैरह भी जरूरत होता था, वो सब नहीं है क्या? वो सब माइग्रेशन वगैरह लगवाया भी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में सबके यहाँ मिले भी नहीं माइग्रेशन ना। माइग्रेशन वैसे जो सीबीएसई बोर्ड से आ रहा है ना, उनको तो चाहिए ही नहीं, हमेशा दूसरे बोर्ड से चाहिए होता है माइग्रेशन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं टीयर 2 लेवल पे। ये जो टीयर 2 लेवल है, ये सेंट्रल ये जो आपका ये जो कैटेगरी, जो स्पेशल कैटेगरी कन्वीनर लेवल है, उस पे हम जो है क्या करेंगे कि ये जो SC ST OBC EWS वाले जो भी कैटेगरी वाले हैं उनके हमारे कन्वीनर्स बन गए। पहले हम लाइजन ऑफिसर्स को बोल रहे थे, लेकिन वो लाइजन ऑफिसर्स और प्रिंसिपल्स ने डिस्कस करके कुछ लोग कन्वीनर्स, फिर हमने चेंज कर दिया उसको, अब वो दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज कन्वीनर्स, सो प्रिंसिपल्स हैज अपॉइंटेड सम कन्वीनर्स। तो वो अब वो कन्वीनर्स जो हैं वो अलग अलग रेस्पेक्टिव बन गए हैं इनकी वेरिफिकेशन के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, जब उनके पास आएगा, जब वो अपना पोर्टल खोलेंगे, जो कोर्स कन्वीनर थे वो अपना कोर्स देख सकते थे, सिर्फ उनके पोर्टल में सिर्फ उन्हीं का कोर्स आएगा, वो किसी का कोर्स नहीं देख सकते थे एप्लीकेशन। लेकिन जब ये लोग अपना ओपन करेंगे तो इनको ये सारी एप्लीकेशंस देख सकेंगे। जब ये सारी एप्लीकेशन देख लेंगे तो उसमें फिल्टर करेंगे उस कैटेगरी को, ये सबके UR SC ST सब देख पाएंगे, मतलब SC ST वाले OBC को भी देख पाएंगे, OBC वाले SC ST को भी देख पाएंगे। लेकिन ये देख लीजिएगा कि SC ST वाले ऑब्वियसली अपने वाले SC ST कैंडिडेट्स को ही, सर्टिफिकेट्स को ही वेरीफाई करें। अगर आप OBC वालों को वेरीफाई कर देंगे तो नीचे उसकी जो अप्रूवल है आपकी यूजर ID से जाएगी, तो वो आप देख लीजिएगा कि आप अपने SC ST वाले SC वाले कैंडिडेट्स को करें, OBC वाले OBC को करें, EWS वाले EWS वाले को करें। अच्छा, PWD वालों का अभी जरा हम बात कर रहे हैं, देखते हैं कि PWD की कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसको we'll try to do, we'll get it done someone else. तो SC ST वालों के लिए the certificate should be in the name of the candidate issued by any of the following. तो जो ये कह रहे थे, विनय जी कह रहे थे कि कुछ हमारे कुछ क्या राइटिंग में क्या होना चाहिए, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि वो कौन इशू करेगा। तो ये बंदे हैं, 5 अथॉरिटीज हैं कैटेगरी में, 5 टाइप ऑफ अथॉरिटीज आर देयर which can issue the SC ST certificate, right? तो ये साफ बोला गया, the applicant must note that SC ST certificate from any other person authority shall not be accepted in any case. तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इनके अलावा कोई सर्टिफिकेट है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। And if the applicant happens to belong to SC ST applicants, caste tribe must be listed in the appropriate Government of India schedule. वो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वो उसमें है कि नहीं है उस तरह की। दिनेश राम जी आए हैं अभी, बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। दिनेश राम जी को रिपीट कर दी। आप ही चल रही थी कि ये मैं बता रहा था कि जो SC ST का जो आपको लॉगिन मिलेगा, वो सर्टिफिकेट जो है आप मतलब जो भी उसको आप देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट उसके नाम का है, इन अथॉरिटीज से इश्यू हुआ है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो शेड्यूल में जो SC STs होते हैं उसी में है वो। तो और कास्ट सर्टिफिकेट शुड क्लियरली स्टेट नेम, ऑफिसर, कास्ट, ट्राइब, whether the applicant belong to SC or ST, district and the state or union territory of the applicant's usual place of residence, and the appropriate Government of India schedule under which his or caste tribe is approved as SC or ST. ये चीजें उसके कास्ट सर्टिफिकेट में ये मेंशन होनी चाहिए। इसमें कोई डेट नहीं होती है, इसमें कोई OBC या EWS की तरह ऐसा नहीं होता है कि ये इशू किस डेट के बाद होना चाहिए। ये कभी भी इशू हुआ हो, बच्चे का फोटो छोटा वाले का लगा हो, जब वो पैदा हुआ जब का लगा हो, तब भी वो भी एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो दिनेश राम जी, आप जब अप्रूवल देंगे तो अपने लॉगिन आईडी से, तो वो बच्चे का वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। OBC के लिए हमें देखना है कि वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए,
और जिसकी कास्ट अपीयर हो रही है ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में, सिर्फ वही देखना चाहिए। ये मैं बता चुका हूं आपको कि अब उसके लिए आप जाएंगे, जो सर्टिफिकेट है ये पोर्टल ये जो पोर्टल है इस पे आप जाएंगे, सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। तो ये आप सेंट्रल लिस्ट में देखेंगे कि मान लीजिए गुजरात में है तो गुजरात की भैया ये लिस्ट है, ये कास्ट है, उसमें ये सर्टिफिकेट में है। क्योंकि ओबीसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओबीसी में प्रॉब्लम ये है कि वो जो कई लोग सर्टिफिकेट जो अटैच करते हैं वो स्टेट लिस्ट में होते हैं, तो वेरिफिकेशन ऑफ दैट कास्ट इन द सेंट्रल लिस्ट इज मस्ट, बिकॉज हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लिस्ट फॉलो होती है। जैसे जो स्टेट जो लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट में कई कास्ट होती हैं जो कि वो ओबीसी होती है, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड नहीं होती है। जैसे मैं जाटों के केस में बता देता हूँ। जाट जो हैं वो यूपी में ओबीसी में आते हैं, दिल्ली में ओबीसी में आते हैं, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में ओबीसी में नहीं आते हैं, इवन स्टेट में भी नहीं आते हैं। तो राजस्थान में स्टेट में आते हैं, लेकिन सिर्फ राजस्थान के जाट सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, एक्सेप्ट 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, भरतपुर और धौलपुर। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें जो जाट हैं वो लोग सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते, बाकी सारे राजस्थान के जाट जो है सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। तो अब क्या होगा, अब राजस्थान की अगर आपने देखा, राजस्थान की सरकार ने तो इशू कर देंगे ओबीसी सर्टिफिकेट वो, ठीक है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में उसको नहीं मानते हैं। तो आप अगर वो सर्टिफिकेट अगर राजस्थान की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ जाट लिखा होगा, तो वहां पे आप वो देख लीजिए कि धौलपुर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का नहीं होना चाहिए, अगर वहां के हैं तो वो इंक्लूड नहीं होंगे उसमें। तो थोड़ा सा कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऐसी कास्ट होती हैं जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं होती हैं लेकिन स्टेट लिस्ट में होती हैं। तो विनय जी थोड़ा सा आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वो सेंट्रल लिस्ट वाली ही कास्ट जो है ना, जो आप इसमें चेक करेंगे पोर्टल में, वही कास्ट हो। अब इसमें बड़ा आसान होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें जैसे बड़ा आसान होता है, जैसे मैंने दिल्ली को इसको क्लिक किया, अब मैं कंट्रोल F करूंगा, देखो ऊपर गया और मैं सीधा उसको ये कास्ट को मारूंगा जाट, ठीक है, इसमें देखो जाट आई मेरा सेंट्रल लिस्ट में दिल्ली में। अब मैं जाऊंगा राजस्थान में, ठीक है, अब मैं गया राजस्थान, ये देखिए, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल F गया और मैंने इसको मारा, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आ गया, जाट लिखा आ गया और साथ में ये भी लिखा आ गया एक्सेप्ट इन भरतपुर एंड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये चीज आप सीधा आप जो है ना, या मान लीजिए मुझे ये तेली कास्ट, देखो तेली आ गया, तो आप ये सर्च कर सकते हैं, तुरंत सर्च कर सकते हैं। तो दिस इज द वे दैट यू कैन वेरीफाई द कास्ट। नाउ सर एक चीज और, सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि सर्टिफिकेट जो है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो ये संदीप जी ने पूछी है कि कास्ट सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए। एक ही अथॉरिटी है, वही डीएम स्टेट का भी इशू करता है, तहसीलदार स्टेट का भी इशू करता है, सेंटर का भी इशू करता है। तो जो सेंटर में सर्टिफिकेट, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सर्टिफिकेट वो लिखा हुआ है कास्ट स्टेट का है, लेकिन क्या वो, अगर आपने कभी, हमें कायदे से तो सेंट्रल लिस्ट ही फॉलो करनी है, क्या वो हम पास्ट में ऐसा करते रहे कि अगर वो कास्ट सेंट्रल लिस्ट में है, सर्टिफिकेट चाहे उसका स्टेट का बना हुआ है, लेकिन क्या वो कास्ट उसकी सेंट्रल लिस्ट में है? अगर वो कास्ट सेंट्रल लिस्ट में है और उसका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना हुआ है जो कि लेटेस्ट है, जो बताता है कि ये नॉन क्रीमी में है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उसने जो बताया कि एक नॉन क्रीमी में है एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ऑफिस मेमोरेंडम, ये देखो ये बता रहा है 2016 में जो क्रीमी लेयर डिसाइड हुई थी 8 लाख रुपए, ये जो स्टेटस क्रीमी लेयर ये जो हमारा डिसाइड हुआ था, ये मेमोरेंडम है, ये वाला जो है ये इसमें हमारा 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया डिसाइड हुआ था। अगर ये वो सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का लाता है और सर्टिफिकेट जो है वो कास्ट का, स्टेट का भी लाता है, लेकिन वो उस जो सर्टिफिकेट में जो कास्ट लिखी है वो सेंट्रल लिस्ट में एग्जिस्ट करती है, तो वी कैन एक्सेप्ट दैट, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हालांकि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वैलिडिटी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शैल बी फॉर फाइनेंशियल ईयर, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वैलिडिटी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं ओबीसी में, हम इसकी बात कर रहे हैं, नॉन क्रीमी की क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट तो पुराना हो सकता है, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो हैज टू बी ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। क्योंकि जो आप राजीव जी भी बोल रहे थे, या कोई ये अभी संदीप भी बोल रहे थे, कि विनय जी भी बोल रहे थे कि लॉकडाउन रहा, तो जो इनकम क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा
पुरानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम से डिसाइड होता है, जो एवरेज जो हम लगाते हैं, तो उसके हम उसको वेव ऑफ नहीं कर रहे हैं। हम कास्ट सर्टिफिकेट हम पुराना भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो नॉन क्रीमी है वो हमारे को लेटेस्ट चाहिएगा, ठीक है। और वो इनकम जो है 8 लाख है। अगर वो अप्लाई करके कर रहा है तो आप कंडीशन आप डालिए उसको कि वो दे। पहले तो आपको यही बोलना है कि कैन ही प्रोड्यूस इट, ठीक है। वो इनकम सर्टिफिकेट ला रहा है, वो दे रहा है, इतने टाइम से बैठा है, वो किया ही होगा ना उसने, या वेट कर रहा है कॉलेज वाले बोलेंगे तभी मैं लाऊंगा। आप देखिए ना कितने महीने हो गए अप्लाई किए हुए। बुलेटिन ऑफ यूनिवर्सिटी ने बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन कितने दिन पहले निकाल दिया। अब वो इतने दिन पहले निकाल दिया तो अभी तक क्यों नहीं लिया उसने सर्टिफिकेट? ये तो पब्लिक डोमेन में था, है ना। तो इतना भी वो नहीं है, थोड़ा सा आपको, वी कांट मेक इट फ्री फॉर ऑल कि एनीबडी कैन, बिकॉज देन देयर आर चांसेस ऑफ स्पूरियस कैंडिडेट्स जस्ट गेटिंग इनटू स्नीकिंग इनटू दिस सिस्टम। तो वो हमारे को थोड़ा चेक लगानी है। मैं आपसे विनय कुमार जी डिटेल में बात करूंगा आपसे कल इस बारे में। अच्छा अरुण सर, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज ये और जानना चाह रहा था कि क्या मैं बोलना चाह रहा था आपसे, बच्चे को इंफॉर्मेशन हम कैसे देंगे? अगर उसका जो भी कमेंट हमारे पास होगा वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाई कर देंगे। अगर जिसका वेरीफाई नहीं हो रहा है उससे कुछ और चीजें डिस्कशन करनी है, उसे और कुछ सर्टिफिकेट मंगवानी है, मान लिया जाए कि नहीं, फॉर्म में है ना, फॉर्म जब आप लॉगिन करेंगे उसमें दिखेगा ना, उसमें डिटेल में फोन नंबर आ रहा होगा, उसका भी आ रहा होगा, उसके फादर का भी आ रहा होगा। उसको फोन करना पड़ेगा। हाँ, फोन करना पड़ेगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं एक नंबर ले लो, जो है ऐसा नंबर ले लो, एक सिम कार्ड ले लो, डबल सिम का फोन होगा तो उसमें ले लो, या तो कोई ऐसा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाल देना जिसके पास भी हो, उससे फोन कर लेना उसको, और बाद में वो कॉलेज रिइंबर्स करेगा वो खर्चा जो है आपको, ठीक है। क्योंकि सिम कार्ड कॉलेज में भी किसी एक के नाम पे नहीं मिल सकते, सबने गवर्नमेंट ने सबको इंडिविजुअल वो आधार बेस कर दिया है सिम कार्ड, तो वो आप यूज कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए। उसके एक्सपेंसेस कॉलेज रिइंबर्स करेगा। 1 महीने का प्लान ले लो, 2 महीने का ले लो, आप जो भी प्लान ले रहे हो उसमें, और फिर उसको वापस आप अपने पास ही रखें। उसको यूज करना है, सिम को यूज करें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें, जो करना चाहें करें। मतलब मेरा आइडिया ये है कि टीचर की पर्सनल लाइफ नहीं खराब होनी चाहिए इस फोन्स के चक्कर में। कुछ पॉइंट्स जोड़ दूं सर इसमें इम्पोर्टेंट, अगर आप परमिशन दे तो। बिल्कुल। ओबीसी को लेकर कुछ बातें जो है, साथ में जुड़ जाओ ना। नहीं राजीव राजीव जी बोलो। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है कम ओबीसी सर्टिफिकेट वो रेजिडेंट कमिश्नर का नहीं होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि हर स्टेट का जो है वो बिहार भवन, झारखंड भवन, उत्तर प्रदेश भवन वो दिल्ली में लोकेटेड है, और इस तरह के जो भवन है यहाँ रेसिडेंट कमिश्नर है, और बच्चे यहाँ इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात के लिए केयरफुल रहना है कि रेजिडेंट कमिश्नर को ये पावर नहीं दिया गया है कि वो डीओपीटी नोटिफिकेशन के जो है कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट वो जारी करता है, नहीं, वो केवल कास्ट सर्टिफिकेट जारी करता है जो रेजिडेंट कमिश्नर्स हैं, और वो वैलिड नहीं होता है, और बच्चे उसको एज अ एक्नॉलेजमेंट यूज करते हैं कि देखिए हमने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि ई डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिव स्टेट्स के जो एक्नॉलेजमेंट है आपको वही एक्सेप्ट करना है, न कि रेजिडेंट कमिश्नर पोस्टेड इन दिल्ली। तो दिल्ली में सारे स्टेट के जो है उनका भवन होता है, उनके हाउसेज होते हैं, जैसे नागालैंड हाउस है, बिहार भवन है। अब बच्चा बिहार भवन से हफ्ते भर में अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बना लेता है, दैट इज नॉट वैलिड। कास्ट सर्टिफिकेट इज डिफरेंट एंड ओबीसी सर्टिफिकेट इज डिफरेंट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके एक्नॉलेजमेंट को एक्नॉलेज करने से पहले ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो ओबीसी कैंडिडेट है क्या उसने ई डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिव स्टेट से बनाया है या फिर उसने रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली से बनाया है। अगर रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली से वो फॉर्म बनाया तो दिस इज ओनली फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, नॉट ओबीसी। वो डीओपीटी यूज नहीं करते हैं उसमें। बट जो दिल्ली का जो कैंडिडेट है, दिल्ली ओबीसी जो है, उसमें दिल्ली एनसीटी लिखा रहता है, वो वैलिड है, ठीक है, उसमें आपको डीओपीटी का नोटिफिकेशन मिलेगा। जो भी रेजिडेंट वाला होता है ना राजीव, उसमें ये डीओपीटी का जो ऑफिस मेमोरेंडम है ना, ये नहीं मेंशन होता, क्योंकि जो बाकी जो सर्टिफिकेट जो ओबीसी के सर्टिफिकेट होते हैं उसमें ये ऑफिस में ये डीओपीटी का नोटिस नंबर ये लिखा होगा, जिसकी भी जो बिल्कुल लेयर होती है। तो चाहे वो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना रहा है, वो
तो अगर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना रहा है, अगर वो ये डीओपीटी मेमोरेंडम डाल रहा है उसमें, तो वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं इस बारे में कल बात कर लेंगे इनसे, क्या नाम है, विनय जी से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स। कुलानंद जी, सर आप है ना लाइन पे? ठीक है, हाँ है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये कौन इशू करेगा? शुड बी इशूड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज मेंशन इन केस ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट्स अबव इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर अपेंडिक्स 7 ऑफ वो ठीक है इंफॉर्मेशन। ये जो सर्टिफिकेट है वो ये है, ठीक है। इसमें इसका ये लिखा होगा, ये 4 चीजें। एक तो इनकम हो गई 8 लाख, ठीक है जी, 8 लाख ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर, और ये हो गए 4 असेट हो गए। तो ये एक सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होगा, तो आप उसको मान लेंगे, ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है ना, एसेट्स भी साथ में। हाँ, इनकम एसेट सर्टिफिकेट। और एसेट जो है ये ऐसा नहीं है कि रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का, मान लीजिए जब हम बोल रहे हैं तो एक बंदे का फ्लैट है कहीं पे 300 स्क्वायर फीट का, दूसरी जगह है 400 का, उसके 6 फ्लैट है 300 स्क्वायर फीट के, तो इन दिस केस आप सबको मर्ज कर देंगे, ठीक है। हाँ, कंबाइंड। ये सारी सीलिंग जो है, कहीं किसी की 2 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड है, कहीं 1 एकड़ की है, तो वो सब मर्ज हो जाती है, ठीक है। और इसमें देखना कि इनकम कवर्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में खास डिफरेंस है कि ओबीसी में केस में फैमिली सिर्फ कैंडिडेट की इनकम ऐड नहीं होती, उसके पेरेंट्स की इनकम ऐड होती है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस में इंडिविजुअल की भी इनकम ऐड होती है। ओबीसी में असेट से कोई लेना देना नहीं है, इनकम से लेना देना है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में इनकम और असेट्स दोनों चीजें हैं। और ओबीसी में एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी इनकम इंक्लूड नहीं होती, लेकिन ईडब्ल्यूएस में सैलरी इनकम भी इंक्लूड होती है, एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड होती है। तो फैमिली इनकम है। जी हाँ, फैमिली इनकम है। तो देखो ना, ये नोट टू करा, द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पस इंक्लूड्स द पर्सन हु सीक्स द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, एज आल्सो हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स। तो सबकी इनकम ऐड हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये वैसे तो ज्यादा स्टूडेंट्स के केस में तो ज्यादा नहीं, लेकिन कोई जॉब ले रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई 45-50 साल का आदमी जॉब ले रहा है और उसका 25 साल का बच्चा भी इंक्लूड कर रहा है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उस केस में वो उसकी बच्चे की इनकम भी ऐड हो जाती है उसमें, ईडब्ल्यूएस में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स है वो, ठीक। हाँ हाँ हाँ। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, नाउ दिस इज फॉर, ये तो था ईडब्ल्यूएस का। अब पीडब्ल्यूडी के केस में हम आ जाते हैं। पीडब्ल्यूडी के केस में अगर मोटा मोटा मैं बता दूं तो आपको 40% से लेस डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेंट मस्ट फर्निश ए वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बियरिंग ए फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। जो सर्टिफिकेट है ना, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर इशू करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और वो ये बेसिकली ये डिसेबिलिटीज हैं, आप देखो, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन हो सकता है, मतलब ये लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं, ये 1 से लेके 8 तक जो है। उसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ये 9, 10, 11 जो है, ये सोचने मतलब सुनने की शक्ति जो है किसी आदमी की कम है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी एक डिसेबिलिटी है। और मेंटल बिहेवियर, तो मेंटल बिहेवियर भी हो सकता है इसमें, जो मेंटल इलनेस का वो हो सकता है। डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये जितनी भी है, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, जितनी भी, ये मैंने लिस्ट डाल दी है जस्ट टू मैंने सॉर्ट आउट किया है। ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं से वो, मतलब उसमें तो बड़ा डिटेल्ड है ये गाइडलाइंस में, डिसेबिलिटी एक्ट में, तो वहां से मैंने सिर्फ जो मतलब की चीजें हैं वो डाल दी हैं। और ये जो है सिर्फ ये नोट करना है कि भैया 40% से डिसेबिलिटी अबव होना चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक नजर मार लेंगे कि ये इन चीजों में ये है कि नहीं। तो ये जो है ये स्टेप 1 है, कैटेगरी सर्टिफिकेट कन्वीनर्स। तो आप सारे कन्वीनर्स, इस बात को मैं दोबारा से यही कह रहा हूं कि आप लोग जब लॉग इन करेंगे, आप सारे रेस्पेक्टिव अपने आपको जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो सारे देख पाएंगे। आप वो जब वो देखेंगे तो उसमें आप अपनी कैटेगरी को फिल्टर कर लेंगे। सबसे पहले SC ST वाले दिनेश राम जी उसको कर लेंगे, विनय शर्मा जी OBC वाले को कर लेंगे, कुलानंद सर EWS वाले को कर लेंगे। तो जब वो ये इसको कर लेंगे फिल्टर, तो उसमें उनकी कास्ट से सर्टिफिकेट को क्लिक करेंगे, वो आएगा, उसको वो ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे
वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा, उसको वो उसमें अप्रूवल कर देंगे। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसको रोक लेंगे। उसमें आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड ये लिखना है। अगर आप रिकमेंड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम उसका प्रिंट ले लेंगे और उसको हम ओके करके कॉलेज में भेज देंगे ऑफिस में। तो ये देख लीजिएगा कि आप जब उसको ओके करेंगे तो वो आपकी उसको वो रिकॉर्ड करेगा, उसकी आपकी यूजर आईडी को रिकॉर्ड करके आगे फॉरवर्ड करेगा वो। तो ऐसे भी किसी के भी साथ शेयर मत करिएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव आईडी है। तो इट इज नॉट, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, कॉशियस, क्योंकि पहले ये डिजिटल सिग्नेचर्स की तरह है आपके। मतलब पहले तो ये होता था कि साइन करते थे कैंडिडेट, अब ये समझिए कि ये आपने जब यूजर आईडी से अप्रूवल दे दी, द मोमेंट यू गिव द अप्रूवल इट हैज बीन साइंड बाय यू। तो वो उसमें कि ये वाला जो है कि भाई इसके पास था या उसके पास था, वो आप ही का ही माना जाएगा। ये सब कैंडिडेट भी अपने डैशबोर्ड पर देख रहा होगा ना, जो भी हम कमेंट्स लिखते हैं उसमें व्हाटएवर वी राइट। हाँ, वो आप वो देख पाएगा, जो आप कमेंट लिखेंगे उसके ऊपर किसी तरीके से वो ये भी देख पाएगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि किस लेवल पे उसका क्रॉस हो गया है, लेवल 1 क्रॉस हो गया, लेवल 2 क्रॉस हो गया, वो ये भी देख पाएगा कहाँ पे अटका हुआ है उसका। फिर हमारे पास आएगा सेंट्रल एडमिशन कमेटी पे। तो हम ये देखेंगे कि सारी अप्रूवल्स जो हैं वो ऑर्डर में है। अगर वो सारी ऑर्डर अप्रूवल्स आर इन ऑर्डर, रिकमेंड और जो भी नॉट रिकमेंड है, अगर नॉट रिकमेंड है तो क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। अगर नॉट रिकमेंड है तो उसको हम अमेंड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि भाई क्यों इसमें दिक्कत आई, और उसका हम प्रिंट आउट लेके हम उसको कोऑर्डिनेटर जो होंगे या मैं होगा, जो भी होंगे, वो उसको अप्रूव करके प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए भेज देंगे। जो तीसरा टियर है वो प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफिस है, वो उसको फॉर्म को रखेंगे, उसको देखेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे कि भैया यूनिवर्सिटी के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से है कि ये नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनल अप्रूवल उसको दे देंगे और स्टूडेंट उसको फीस पे करके और फिर एडमिशन उसका हो गया। ये कुछ बातें हैं, कुछ आप जो ध्यान रखेंगे। लॉग इन आईडीज विल, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, स्पेसिफिकली पढ़ रहा हूँ, इसमें यू हैव टू बी वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, लॉग इन आईडीज विल ओनली बी अलॉटेड टू द कन्वीनर्स या टीचर इंचार्जेस जो भी है। So the responsibility of the approval at their level lies with the convener from whose user ID the approval is given. This time the application forms will record the respective approvals with the user IDs. So there are no signature, physical signature. ये record जो आपकी approval होगी वो आपके इससे होगी. For all declined pending cases, remarks will have to be made citing the reason for the same. These remarks will reflect on the dashboard of the applicants. All cases within a cutoff will have to be closed before the declaration of next cutoff. In case the applicant has studied from CBSE board and his or her mark sheet is not uploaded for whatever reasons, the colleges are requested to access the mark sheet directly from CBSE portal, DigiLocker as past practice. In case the candidate does not respond within the stipulated time or where the documents remain insufficient even after sending reminders, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी आप करें, जैसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नंबर में आप उसको मैसेज भेज दीजिए, वर्बल कम्युनिकेशन की बजाय ना जो आप बोले उसको मैसेज भेज दें, कि ये कल को वो ये ना कह पाए कि मेरे को जानबूझ के अप्रूवल नहीं दीजिए, मेरे से कन्वीनर ने ऐसे बोला वैसे बोला। आप उसको सर हियर वी कैन से दैट थ्रू ईमेल विल बी बेटर, क्योंकि फिर वो जो है एक फॉर्मल वो भी हो सकता है। नहीं, वो तो व्हाट्सएप मैसेज भी आपका फॉर्मल है, वो भी रिकॉग्नाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको व्हाट्सएप मैसेज, थोड़ा ईमेल थोड़ा लेट रिस्पांस होता है, इट इज इमीडिएट। तो आप व्हाट्सएप उसको बात कर लें, बात करके बोलें कि हम आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, आप उसके हिसाब से आप रेस्पॉन्ड करिए, वो भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जो हम उसको कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका एक व्हाट्सएप मैसेज, हम फोन कर सकते हैं लेकिन व्हाट्सएप मैसेज भी जरूर भेज दें उसको, ताकि हमारे पास एक रीजन, वो ग्रीवेंस में कल को यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट डाल देगा, मेरे को कॉलेज ने डिनाई कर दिया, तो हमारे पास कम्युनिकेटेड है, रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो नो एप्लीकेशन टू बी लेफ्ट अनडिसाइडेड, इट हैज टू बी ईदर अप्रूव्ड और डिक्लाइंड बिफोर डिक्लेयरिंग द नेक्स्ट कट ऑफ। माइनर डिस्क्रिपेंसी इन द स्पेलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, अगर किसी की नाम में मान लीजिए सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है उसके बिन्ने BINAY की जगह BNEY लिखा हुआ है, विनय कुमार शर्मा, उसकी वजह से उसको आप बोल रहे हो कि नहीं तेरा ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, बाकी सर्टिफिकेट में सब सही है, एक में सब वो थोड़ा नाम आई की जगह ए लिख गया या उसमें फादर्स नेम सेम है, सब कुछ सेम है। तो यूनिवर्सिटी का भी यही कहना है कि माइनर डिस्क्रिपेंसीज की बेसिस पे आप उसको ना रोके और उसको आगे बाकी सर्टिफिकेट्स में मैच कर रहा है, unless and until you have a valid reason to it creates a suspicion in your mind that yes this is problematic, so you can give the approval, otherwise आप उसको मतलब रोक सकते हैं।
So this was presentation from my side. अच्छा, ये स्टूडेंट की मैं PDF बना के भी आपको मेल कर दूंगा और आपको हार्ड कॉपी भी कल हम दे देंगे। कल हम 9 बजे मिलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, सारे लोग आ जाएं 9 बजे। तो विल गैदर एट इन दी दैट ये जो C5 है उसमें हम मिलते हैं। वहां पे हम और कोई किसी की समस्या है तो उसको करेंगे। आइडिया ये है कि 2 दिन में हम समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद आप कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे हो आपस में सब हम मिलजुल के उसको कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगता कि कोई। अरुण सर, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमें पहले ऐसे पता चला था कि शायद कई आईडी बनेगा, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन से ये लगा कि नहीं, आईडी सिर्फ एक ही टीचर को मिलेगा जो उस रिस्पेक्टिव एडमिशन के इंचार्ज होंगे। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर जब अगर एक ही आईडी बन रहा है तो कोई भी टीचर होंगे वो अपना आईडी किसी दूसरे को नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, भले हम आपको अपना आईडी दे दें, आप नया आईडी दे दें, वो दूसरी बात है। जब आईडी एक ही बन रही है तो इसमें कमिटी मेंबर जो हम बना रहे हैं, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अगर 4 लोगों के 4 फैकल्टी के 4 फ्रेंड का अगर कमिटी मेंबर बनाऊं तो उनका क्या वर्क होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि आईडी तो मेरे पास है। इट्स सिंपल कि आप अपना वर्क डेलीगेट कर रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर रहे हैं। आप उसके साथ बैठे हैं, आप उसको बोल दो साइमल्टेनियसली ये भी काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है, बस ये आप कर सकते हैं। जाते हुए आप जाइए, अपना ईमेल पासवर्ड चेंज कर दीजिए अगर आपको लगता है, अगर आपको ट्रस्ट है किसी पे। हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, हम भी अपने आईडी क्रिएट करूंगा, मैं भी अपना आईडी क्रिएट करूंगा, एक आईडी क्रिएट करूंगा और वो शेयर करूंगा अपने टीचर्स के साथ जो उनको काम कराऊंगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को इफ यू हैव ट्रस्ट। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 1, 2 या 3 आईडी तो एक इस पर आप जनरेट कर दीजिए ना, ताकि जो है कि मान लिया कि मैं उस समय मेरा नेट जैसे वर्क फ्रॉम होम है, अगर मान लिया घर में हूँ, नेट नहीं चल पा रहा है या कुछ हो रहा है, तो कोई और मेरा जो फ्रेंड है उससे मैं बात करके भाई आप अपने आईडी से कर लो। हाँ, तो आप उसको शेयर कर दो ना। नहीं, आईडी देखिए मैं वही कहा ना, वो तो रिस्क वाली बात है ना। ये आईडी अगर मान लिया कि 2 या 3 अगर हम जनरेट कर देते हैं तो उसमें आखिर कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, उसमें प्रॉब्लम है, वो वी कैन नॉट क्रिएट मल्टीपल आईडीज। आखिर उसमें वही जानना चाह रहा हूँ ना, उसमें जैसे कि जितने कन्वेनर बनते हैं वो सारे के जो है कि आप आईडी जब बन रहा है उसमें को कन्वेनर बना दिया जाएगा कि एक कमेटी के साथ 2 आदमी रहेंगे तो दोनों आपस में करेंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और देखिए सर कि कुछ चीजें फेथ अलग चीजें होती है, लेकिन जहाँ डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है ना, रिटर्न आ जाती है, तो वहाँ कोई फेथ काम नहीं करता, वहाँ पर सिर्फ रिटर्न। प्रिंसिपल साहब से डिस्कस कर लेंगे कल हम, अगर प्रिंसिपल साहब इसमें कुछ अप्रूवल देंगे तो विल डिस्कस इट एंड टुमारो। तो उसमें देखते हैं कि हम क्या हो सकता है, कैसे सर कल तो एडमिशन भी होगा ना, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। आप इतनी कोई भीड़ नहीं आने वाली है कि इमीडिएटली डिसीजन अभी लिया जाएगा इस पे। तो कल अभी इतना कुछ होने वाला भी नहीं है, आराम से 2-4 ही होंगे। तो अभी आप कल आ रहे हैं ना आप कॉलेज? हाँ, मैं कल कॉलेज आऊंगा। जी, तो कल हम भी होंगे वहाँ पर, कोई ये सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। अरुण, मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे। जो आप ये कह रहे हो कि जो पहली वाली चीज है कि ये कैलकुलेशन जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने आप होगा बेस्ट 4 का, मैं बता रहा हूँ ये ऐसा हमें बोला गया है, यूनिवर्सिटी ने बोला है, बट स्टिल वी हैव टू सी कि वेदर इट विल फंक्शन प्रॉपर्ली और नॉट। आई कैन नॉट गारंटी। नहीं, अगर ये नहीं कर रहा है, हमें अगर एक आध केस में दिखता है तो क्या हम इसे मैनुअली करेंगे? फिर बिल्कुल मैनुअली करके फिर हम इसके मार्क्स या जो भी बेस्ट ऑफ 4 डालना होता है वो डालेंगे। तो उसमें मैनुअल करने की फैसिलिटी होगी? तो उसमें नहीं है मैनुअल फैसिलिटी, आपको खुद करनी पड़ेगी। फिर नहीं, वो तो हम मैनुअली करके मतलब उसमें टाइप करने की जो हमारा मैनुअल कैलकुलेशन, वो तो होगा ही। अगर कुछ ना कुछ तो उसके अंदर, मैं वही बोल रहा हूँ कि कल मैं एग्जैक्टली इसको जब अपलोड होगा 10 बजे के बाद, कोई भी बच्चे आएंगे, जितने भी आएंगे, उनकी एप्लीकेशन थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे ही कुछ केसेस आए तुरंत उसको ना अप्रूव करके जहां भी अगर आपको डाउट लग रहा है जरा सा, तो मैं वहीं पे होऊंगा, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा अरुण जी, जैसे किसी स्टूडेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं अटैच है और हम मंगवाते हैं तो वो कहाँ पर मंगवाएंगे? कोई स्पेसिफिक ईमेल आईडी है क्या? ईमेल आईडी है sbscadmissions2020@gmail.com। वो शेयर कर दिया जाएगा आपके सभी। इसके साथ ही अभी जो प्रेजेंटेशन आपको मेल होगी उसमें जो सभी उसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी। फोन नंबर आप खुद अपना, मैंने बताया जैसे फोन नंबर आप जो है वो खुद आप ले लीजिए। एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जो आप बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में फिल्टर लगेगा एक कट ऑफ के अकॉर्डिंगली,
तो वो फिल्टर क्या कॉलेज ही लगाएगा या वो डिपार्टमेंट को करना है? देखिए बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। ये हमें सुबह 10 बजे ही पता लग पाएगा कि जब वो एप्लीकेंट्स जब वो लाएंगे कि हमारे जो मेन प्रिंसिपल का आईडी है उससे फिल्टर लगेगा सबके लिए, या हर टीचर इंचार्ज को अपने फिल्टर लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे है वो मेन मास्टर जो लॉगिन आईडी है उसी से लगना चाहिए। ठीक है, अभी एक्टिव नहीं किया, कल ही पता चलेगा। एक्टिव नहीं किया उन्होंने, एक्टिव नहीं किया तो हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक। अरुण सर एक आपसे ना मैथ ऑनर्स वाला रह गया है क्राइटेरिया, वैसे हम देख लेंगे। ओके 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 मैथ्स ऑनर्स वाला ना अभी दिखा देते हैं। मैथ्स ऑनर्स वाले में कौन सी दिक्कत है? अत्री सर तब तक मेरी एक क्वेरी थी छोटी सी। हाँ अनिल कुमार बोल रहा हूँ सर मैं। अनिल जी कैसे हैं आप? सर बढ़िया। मैं ये पूछ रहा था एक्चुअली ये SC/ST के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बारे में एक छोटी सी क्वेरी थी। क्वेरी ये थी पहले जो ये होता था कि जो ऑनलाइन जैसे कि जो सर्टिफिकेट चेक हो जाता था तो उसके लिए तो हम किसी तरह का पेरेंट्स का या सिबलिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं लेते थे, लेकिन ये जिसका कोई ऑनलाइन सुन तो सर पूरा सुन लीजिए पहले। लेकिन जिस बच्चे का ऑनलाइन चेक नहीं होता था तो उस बच्चे का हम या तो पेरेंट्स का या सिबलिंग का हम लोग जो है सर्टिफिकेट ले लेते थे। तो क्या आपकी बार भी ऐसा कोई इश्यू है क्या? आप चाहें, आपके कन्वीनर चाहें, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। आपको कैसे भी लगता है अल्टीमेटली इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कन्वीनर। दिनेश राम जी बताएंगे इस बारे में। अगर वो सेटिस्फाइड है कि वो बच्चा जेन्युइन है और उसका कोई वो नहीं है तो वो उसको कर सकते हैं, नहीं तो उसको मंगा सकते हैं उससे डॉक्यूमेंट। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इसीलिए बोला है कि मान लीजिए उसको लग रहा है कि ये फलाना नाम का बंदा है, ठीक है, करम बेदी है जी, ठीक है, वो SC सर्टिफिकेट लगा रहा है, आपको लग रहा है जी बेदी होते नहीं SC, आपको डाउट लग रहा है, आप बोलो भाई दिखा मेरे को, तू कहाँ पर है, तू भेज मेरे को मेल भेज, तू अपने फादर की सर्टिफिकेट की भेज, डाउटफुल लग रहा है हमारे को, दैट यू कैन डू। वो आपके कन्वीनर साहब कर सकते हैं। अगर वो लग रहा है उनको कि बिल्कुल जेन्युइन है जी, तो पर्पस यही है कि कोई जेन्युइन बच्चा डिनाई ना हो एडमिशन से, लेकिन एट द सेम टाइम कोई इस तरह का इनएलिजिबल आदमी जो है उसका फायदा ना उठा ले। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा अरुण सर जी, एक चीज ये बताइए, जैसे कि अभी आप दूसरे डिपार्टमेंट में बता रहे थे, जैसे इको में बता रहे थे कि मैथमेटिक्स में होना चाहिए और कुछ परसेंटेज कम होने की बात आप कर रहे थे, तो मान लीजिए कि परसेंटेज कम करने की जैसे बात है, कोई दूसरा सब्जेक्ट उसने पढ़ लिया है और उसका परसेंटेज कम करना है, तो पहले हमको टोटल नंबर करना है कितना कितना मार्क्स आया, उसके बाद परसेंटेज कम करना है, या फिर पहले 3 का टोटल ऐड करके उसका परसेंटेज लगा के उसके बाद 4th का अलग से उसमें परसेंटेज लगा के 2% कम करना है, ये क्या सिस्टम है आपका? आप मैथमेटिक्स में आप बताओ, अगर मैं टोटल में से 10 नंबर कम कर दूं और फिर परसेंटेज निकालूं, एक ही बात है, या टोटल परसेंटेज में से 2.5% कम कर दूं तब भी एक ही बात है। नहीं वो तो फिर वहाँ वैसे क्या कि देखिए, मान लीजिए कि मैं समझ रहा हूँ चीजों को, आप समझ रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे कि नॉन मैथमेटिक्स के होंगे, हो सकता है उनको ये प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो मैं एक मिनट जरा मैथमेटिक्स वाला देख लें। ये सर BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, आपके यहाँ BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स ही है, BA ऑनर्स मैथमेटिक्स है? BSc ऑनर्स। तो इसकी कंडीशन ये है कि 50% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है, और जो है वही है कि मैथमेटिक्स एंड 2 अदर बेस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट जो लिस्ट है और लिस्ट बी में वो इंक्लूड होंगे, तो वही सेम तरीका है, बस ये है कि 50% मार्क्स होने चाहिए उसके मैथ्स में। ये मैं डाल देता हूँ अभी। और जो एक जो इक्विवेलेंट वाला था कि जैसे महाराष्ट्र में मैथ एंड स्टैट्स इज सेम एज मैथ, वो वाला रूल यहाँ पे रहेंगे, राइट सर? हाँ वो तो है ही, वो तो बिल्कुल है ही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रखा था ना मेरा? चलिए सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और किसी की क्वेरी? यार अतरी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन है? मैं दिनेश राम। हाँ दिनेश राम जी नमस्कार। यार मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ तो शुरू से नहीं सुन पाया, तो कल आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप उसको बैठ लीजिए, घर में बैठ के आराम से देख लीजिए। अच्छा, वैसे कल मिल लेंगे, कल 9 बजे मिल रहे हैं ना लोग? हाँ बिल्कुल मिलेंगे सर। हाँ ठीक है, कल कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के कोर्स टीचर से कोई नहीं आया है क्वेरी? नहीं है हिस्ट्री टीचर को कोई क्वेरी नहीं है तो जबरदस्ती कहाँ से आएगी? क्लियर है उनको सब? क्लियर है तो ठीक है, क्वेरी नहीं है तो भी पूछ लेना जरूरी है ना।
अरे जबरदस्ती पूछे वरना जब क्लियर है। मृत्युंजय सर पूछ सकते हैं। मृत्युंजय जी कोई दिक्कत है? मृत्युंजय जी ठीक है? मृत्युंजय सर, मृत्युंजय शायद माइक ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ मृत्युंजय सर उठ रहे हैं, वो माइक अनम्यूट कर रहे हैं या उठ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? ठीक है, चलिए ठीक है, ये बिल्कुल ठीक। मेरा लिप्स रीड कर रहा हूँ मैं, कह रहे हैं ठीक है सब। सुनाई नहीं दे रहा सर, इसलिए आपने अनम्यूट किया हुआ है, वो म्यूट किया हुआ है आपने, अनम्यूट करो उसको। कुछ कहना चाहते? जो थोड़ा मुझे समझ में आया है कि विनय शर्मा जी थोड़ा ज्यादा परेशान है, उनको मैं एश्योर करना चाहूंगा। कल बात कर लेंगे। हाँ, हम विनय जी हम लोग कल रहेंगे, कल आपके सारे प्रॉब्लम का समाधान निकल जाएगा, डोंट वरी, है ना? मैं तो समझता हूँ। तो फिर समापन करें मीटिंग का जी। हाँ यू कैन सर। प्रिंसिपल साहब एक मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी है ना, एक काउंट करना? एक लैंग्वेज वो कंपलसरी है, एक लैंग्वेज वो। अच्छा, वो कोर हो या इलेक्टिव हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं या कोर ही लेना है? हाँ कोई भी, नहीं कोर इलेक्टिव कोई भी ले सकता है, फंक्शनल कोर इलेक्टिव फंक्शनल तीनों में से कोई भी ले सकता है। अच्छा, मतलब एक लैंग्वेज होना चाहिए, चाहे उसमें जिसमें भी ज्यादा नंबर हो वो ले सकता है वो। हाँ कोर हो या इलेक्टिव हो, जिसमें बिल्कुल जिसने कोर इलेक्टिव पढ़ा है, अगर वो इलेक्टिव जो है उसमें ज्यादा मार्क्स है तो वो कोर को छोड़ के इलेक्टिव लैंग्वेज में काउंट कर ले, कोई इशू नहीं है। सरदारा सर कुछ कहना चाहते हैं? बस my thanks to all of you and particularly the admission team and I'm very much confident सब कुछ ठीक होगा। बस मेरा एक ही मैसेज है आप सबके लिए कि थोड़ा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो आपस में उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें और हेजिटेट ना करें सेंट्रल टीम से पूछने के लिए, और एक दूसरे की जो भी एक्सपीरियंस लोग रहे हैं जिन्होंने पहले काम किया है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो चाहे राइटिंग में नोट्स बना के या वर्बली एक दूसरे को हेल्प करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़ा अच्छे उनके काम उन्होंने पहले किए हुए हैं, उनकी नॉलेज भी पूरी है। इस बार अगर कुछ लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था विनय कुमार जी को थोड़ा सा वो हो रहा है, तो राजीव रंजन उनको गाइड कर सकते हैं, डॉक्टर राजन और डॉक्टर अत्री तो है ही हैं ऑलरेडी, और बाकी भी लोग जो है जैसे दिनेश राम जी है या कोई और भी टीचर इंचार्ज को भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो जो पहले सीनियर टीचर्स ने या और टीचर्स ने एडमिशंस पहले किए हुए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज एज ए फैमिली और सब मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करें। यही मेरी एक अपील है सबसे, और हम इसको बहुत सक्सेसफुली करेंगे। और हमारा कॉलेज जाना गया है एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हमेशा जाना जाएगा। इसी मैसेज के साथ आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर अत्री एंड टीम एंड ऑल अदर टीचर इंचार्जेस, कन्वीनर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड अदर टीचर्स। आई एम श्योर इट विल बी a great successful endeavor we are going to start from tomorrow. Thank you very much. This is a humble message from my side. Thank you. मैं जरा कुछ कहना चाह रहा था आपसे, एक रिक्वेस्ट था। अरुण सर से भी मैं जैसे कहा था कि सर आईडी मल्टीपल आईडी सर कोशिश किया जाए, अगर बन जाए तो कल उसके ऊपर चेक करते हैं, कल सिस्टम में चेक करते हैं कि किस तरह से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कल ही क्या कहते हैं जो है यूनिवर्सिटी से आया है और उसमें क्या गाइडलाइंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। हम जरूर चाहेंगे कि हर किसी के लिए सुविधा हो, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू लुक इनटू द इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज गाइडलाइंस। वो हम डेफिनेटली करेंगे, कल सुबह बैठेंगे हम ये बात करेंगे और उसको जब ऑपरेट करेंगे तो कई चीजें हमारे को पता लगेगी किस तरह, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ यही चाहती है कि हर चीज की जो है रिकॉर्डिंग हो, कि इन द सेंस के भाई किस स्टेप पे क्या काम हुआ, ताकि बच्चे को पता लग जाए कि भाई ये मैं वो कर रहा हूँ। तो इसी चक्कर में शायद उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी जो आपने बात रेज की है उसको हम बाकायदा बैठ के पूरा अटेंड करेंगे और देखेंगे कि अगर ये हो सकता है तो वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यस, समथिंग आई वांटेड टू। आप बोलिए, कॉलेज पहुंचना कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए डॉक्टर अरुण अत्री से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कितने बजे पहुंचना है? सुबह 9 बजे शार्प। अरुण एक रिक्वेस्ट है जी सर, जो एक आईडी के बदले अगर 2 आईडी हर एक डिपार्टमेंट को दे देंगे थोड़ा बेटर रहेगा। देखते हैं सर, कल डिस्कस करेंगे इस पे कि क्या। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाएगी। मान लीजिए एक के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा भी कर सकता है इसकी जगह पर। देखते हैं सर, उसको कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस पर कल ही बात करेंगे, ठीक है।
कल 9 बजे मिलते हैं साथ। चलिए ठीक है। Thank you all of you. Okay, sir. Thank you, sir. We can call the meeting off. Thank you. I hope every doubt has been cleared. Rest तो आपसे शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी और PDF भी, और वैसे भी the team is always available and it will be all.